कम्युनिकेशन टुडे की ओर से आयोजित 22वें वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित है, ये जो वेबिनार है हमने शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ के संयुक्त तत्वावधान में उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति जो अभियान शुरू किया है उसके तहत आयोजित किया जा रहा है। इसकी विस्तार से बातचीत करने के पूर्व मैं शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, जो स्वयं एक कथाकार और कवियत्री हैं, डॉक्टर उषा साहनी, उनसे अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना के माध्यम से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। डॉक्टर उषा साहनी। आभार सर। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या श्वेत पद्मासना। माँ शारदे के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी इस 22वीं वेबिनार का आयोजन करते हुए हर्षित हूँ। We actually started this webinar series on 2nd of October 2020 when everything seems to be at stake in regards to education, other academic activities, no physical contact, nobody was able to be in connect in person. At that time, the convener of this webinar series, Professor Sanjeev Bhanawat, who has been the head of Center for Mass Communication, University of Rajasthan, Jaipur, and an acclaimed media academician, he gave this idea that why not to build up a beautiful connect through this webinar series so that the ongoing process of ideas, thoughts, and the observations during this COVID period and otherwise also can be done in a way so that we all should be with the feeling that we are connected. We are joyous to be here on this platform to conduct our 22nd webinar in that series, which is being done under the umbrella of Communication Today, Media Quarterly Journal, which has really given the platform to a number of media academicians, research scholars, and practitioners, and people with high repute who could put their thoughts through the words in this journal. And we are running in the 25th year of it. So that way we are also celebrating the silver jubilee of it. I'm very much thankful to Professor Sanjeev Bhanawat that he developed this idea. The brain was there behind the entire thing from Professor Bhanawat, because of which we are now at this stage that we are going to discuss something again very important, and wherein this is a very, very contemporary topic as well. Earlier also it was, and it is going to be in future also. But with this webinar, we know that we are going to come out with such findings and conclusions which will help in future, because we have pretty experienced award-winning journalists amongst us, women journalists, who has been facing so many things, struggled a lot, but achieved a lot, and they can be a real guide to all of us so that others who are looking forward to build up a career in this field can learn and get an idea. Mission Shakti, we all know, this is a campaign being run under the umbrella of government of UP. We are fortunate that Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College has got associated with this webinar series of ours, and we are doing this second webinar in the collaboration of Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College Meerut. Our principal,
Dr. Dinesh Chand will be here shortly, and we are fortunate to flash light upon very important topic. So what this topic is basically, from where it started, how it's processed, and where it will move ahead. For this purpose, I would like to invite Professor Sanjeev Bhanavat to talk in detail. Sir, please. धन्यवाद डॉक्टर उषा साहनी। जैसा कि आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में ये जानकारी दी कि कम्युनिकेशन टुडे की लगभग 2.5 दशक की ये यात्रा, जिसके माध्यम से हमने कोशिश की मीडिया के विभिन्न पक्षों पर जो हमारे युवा शोधार्थी काम कर रहे हैं, हमारे वरिष्ठ शिक्षाविद और मीडिया कर्मी, इसके माध्यम से मीडिया के विभिन्न पक्षों पर एक वैचारिक अभियान की शुरुआत कर सकें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए लगभग 24 साल पहले जो यात्रा शुरू की, आज इस रजत जयंती के अवसर पर एक प्रयास हम कर रहे हैं देश में मीडिया शिक्षा का सर्वे करने का। लगभग 15 राज्यों में जिस तरह से मीडिया शिक्षा का विस्तार हुआ, शुरुआत हुई, उस पर मेरे पास शोधालेख आ चुके हैं। कुछ राज्यों की और प्रतीक्षा है, तो उम्मीद करते हैं अपने आप में ये विशेषांक देश की मीडिया शिक्षा पर, क्योंकि मीडिया शिक्षा को इस वर्ष 100 साल पूरे हो गए, तो उस संदर्भ में हमने एक ये प्रयास किया है। पिछला जो हमारा अंक था वो कोविड और मीडिया, ये विशेषांक निकाला लगभग 350 पृष्ठों का। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मीडिया से जुड़े हुए पक्षों पर इस तरह की एक पूरे एक अभियान को, और उस दौर में जब एक समय लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, घर से बाहर निकलते हुए एक हम भयभीत भयाक्रांत रहते थे, उस दौर में इस विचार श्रृंखला को हम सतत बनाए रखें, उस दृष्टि से ये छोटा सा उपक्रम है। और 22वीं इस वेबिनार के माध्यम से अब तक हम लगभग 80 से अधिक विशेषज्ञ देश के विभिन्न अंचलों में जो काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, हम उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। फिजिकल आयोजनों की परंतु 200-250 के आसपास आयोजन किए होंगे अपने सेवा काल में, लेकिन मुझे लगा कि ये जो तकनीक ने हमको सुविधा दी है, इसके माध्यम से बहुत बड़े समूह तक पहुंच सकने में सक्षम है। भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए जो हमारी भाषा को समझने में सक्षम है। अभी आयोजन शुरू होने से पहले प्रियंका जी से मेरी बात हो रही थी कि किस तरह से 2 दिन पहले उन्होंने एक हेल्थ शो किया जो लगभग 25,000 लोगों तक एक दिन में पहुंच गया। तो ये जो विचार हम इसके माध्यम से देना चाहते हैं, उसको देश दराज और बल्कि देश के बाहर पृथ्वी सेंगर जो हमारी तकनीकी पार्ट्स का संभाल रही हैं, उन्होंने बताया कि फिलीपाइन से 2 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं। लगभग 7-8 कंट्रीज इस तरह के हैं जहां से अक्सर अलग अलग वेबिनार्स में हमें पार्टिसिपेशन जो है मिलता रहा है। जो रजिस्टर्ड हुए हैं, हो सकता है कि समय की प्रतिकूलता के कारण वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इसका वीडियो बना करके उनकी मेल के थ्रू भेजते हैं और उस यूट्यूब लिंक को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से शेयर करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनका अनुभव, उनके विचार हम एक व्यापक जनसमूह तक शेयर करें और विचार की श्रृंखला बराबर जारी रहे। ये विचार कोई एक दिन में परिवर्तन नहीं ला सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये सतत एक निवेश है और अंततः कहीं हम उस मानसिकता को या जिस तरह के मुद्दों पर हम कहीं चर्चा कर रहे हैं, उसमें बदलाव के लिए एक आधार भूमि तैयार कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टुडे इस दिशा में एक विनम्र प्रयास है। मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से यह अभियान गत वर्ष शुरू किया था और इसके तहत अनेक तरह के कार्यक्रम साप्ताहिक दृष्टि से वो आयोजित कर रहे हैं और शैक्षणिक संस्थानों में भी, विशेषकर जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं, वहाँ उन बच्चियों को अपने अधिकारों के प्रति, अपने परिवेश के प्रति सजग बनाने के लिए ये इस तरह के आयोजनों की नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या और भी जो और विकल्प हो सकते हैं, उनके माध्यम से उन्हें सजग सचेत करने का ये एक प्रयास है। इसी प्रयास में हमने ये एक शुरुआत की है कि इस अवसर पर विशेषकर महिला पत्रकारों से, मीडिया में महिलाओं की स्थिति को लेकर के बरसों तक चर्चा होती रही है। बहुत सारे शोध इस दिशा में हुए हैं, अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। स्वयं मेरे निर्देशन में कुछ विद्यार्थियों ने इन विषयों पर शोध कार्य किया है। मीडिया अपने आप में एक बहुत व्यापक शब्द है। रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, फिल्म और अब हम डिजिटल माध्यम की बात करते हैं।
नानाविध माध्यम हमारे सामने हैं जहां महिलाओं की कवरेज को लेकर के, महिलाओं की उपस्थिति को लेकर के सतत चर्चा होती रही है। मुझे याद है 1984 में जोशी कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो उन्होंने दूरदर्शन पर महिलाओं के उस स्वरूप को लेकर के पूरा एक चैप्टर लिखा है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उन्होंने उस समय एक तरह से सिफारिशें की, उन मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किए, जो आज भी किसी न किसी रूप में जीवित हैं इतने सारे टीवी चैनल्स की शुरुआत के बाद। हमारे जो कोर्सेज हैं जर्नलिज्म, मेरा तो देश में अनेक विश्वविद्यालयों में जाना हुआ, उन पाठ्यक्रमों में लड़कियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि मीडिया के विभिन्न जो हमारे और माध्यम हैं, रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, उन सब में महिलाओं ने अपनी एक प्रभावी उपस्थिति न सिर्फ दर्ज कराई है, बल्कि कुछ वर्षों में जो रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस हैं, की पोजीशंस हैं, हम जब करियर की शुरुआत की थी उस समय मृणाल पांडे, शीला झुनझुनवाला या इन महिलाओं के बारे में जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं थी, वामा है, साप्ताहिक हिंदुस्तान, उनके संपादक के रूप में उन्होंने नेतृत्व दिया। बाद में मृणाल जी प्रसार भारती की चेयरमैन बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो दौर आ गया है उसमें महिलाओं ने बहुत सारी रेस्पॉन्सिबल पोजीशंस भी प्राप्त की हैं। तो एक प्रकार से मीडिया से जिस संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं महिला मुद्दों को लेकर के, उसमें उनका सीधा हस्तक्षेप भी हुआ है। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया, देश विदेश में बहुत सारे इस तरह के आयोजन भी हुए। हमने सोचा क्यों नहीं इस अवसर पर जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं और जो वर्षों से काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है राष्ट्रीय पत्रिकाओं के माध्यम से अलग अलग संदर्भों में, क्यों नहीं उनके साथ एक सीधा संवाद स्थापित किया जाए। आज हमारे पास अलग अलग 4 क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि आप में से कुछ जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक तरह से उद्यमी के रूप में, एंटरप्रेन्योरशिप जिसे आप कहते हैं, उसमें भी प्रियंका जी ने जिस तरह से यूट्यूब चैनल, नवभारत टाइम्स जैसे अखबारों में काम करके जिस तरह से एक चैनल की शुरुआत की है और अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करके उन्होंने एक नया प्रयोग वो कर रही हैं। सर्वेश जी एक फोटोग्राफर के रूप में उन्होंने कितने तरह के आयोजन, मतलब जो हमारे इस तरह के जो होते हैं जहां हम प्राय ये कल्पना करते हैं कि वो क्षेत्र महिलाओं के लिए शायद नहीं है, जो उस तरह की हार्ट बीट्स हैं, वहां जाकर के उस फोटोज के माध्यम से उन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जाकर के जिस तरह से अपनी पहचान बताई है, वो शायद, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो महिला को शक्ति के प्रतीक माना गया है। दुर्गा की जब हम बात करते हैं तो जो रक्षा मंत्रालय बहुत पहले हमारे यहाँ महिलाओं को एक तरह से दे दिया गया था, महिला रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ये तो हमारी पौराणिक कल्पना में महिलाओं के पास ही है। तो जिस शक्ति के रूप में हम उसकी एक तरह से उपासना की है, तो मुझे लगता है आज के दौर में कई महिलाओं ने उसको एक तरह से चरितार्थ किया है मीडिया के क्षेत्र में। यूँ तो जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रेजेंस स्थापित की है। तो आज हम सीधा संवाद करना चाहेंगे कि जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, जो लड़कियां कोर्स करके या उनकी अपनी अभिरुचि के माध्यम से आना चाहती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में, चाहे वेतन को लेकर के, या और बहुत सारे इस तरह के प्रसंग हो सकते हैं जिनको लेकर के उनके मन में कई शंकाएं हो सकती हैं, कई इच्छाएं हो सकती हैं जानने के लिए। महिला पत्रिकाएं किस तरह से निकल रही हैं, एक तरफ बिल्कुल ट्रेडिशनल पत्रिकाएं निकल रही हैं जो अभी भी सिलाई कढ़ाई पर्यटन विशेषांकों पर केंद्रित हैं, एक तरफ वो पत्रिकाएं निकल रही हैं जो महिला अधिकार या जिस संवैधानिक समानता की हम बात कर रहे हैं उन पर केंद्रित है। उनका कंटेंट किस तरह का है, समाचार पत्रों के दैनिक पृष्ठों में किस तरह से स्थान दिया जा रहा है, कवरेज जो हो रही है उसमें किस तरह के भाषा संस्कार है, किस तरह के वैचारिक बदलाव की अपेक्षा की जा रही है। जब हम समानता की बात करते हैं, इस आधी दुनिया की आशा आकांक्षाओं का प्रतीक मीडिया किस रूप में उभर करके आ रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं, हालांकि संक्षिप्त समय में सारे प्रश्नों पर शायद चर्चा न की जा सके, लेकिन फिर भी मूल रूप से उन चुनौतियों और संभावनाओं को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रियंका जी हैं, सर्वेश जी हैं, मनीषा जी हैं जो राष्ट्रीय सहारा के माध्यम से इन विषयों पर लगातार लिखती रही हैं, और भावना जी हैं जो लगभग 2 दशक की पत्रकारिता के बाद अब शोध के क्षेत्र में आई है। तो मैं अनुरोध करूंगा उषा जी से कि सबका औपचारिक परिचय कराते हुए उनको आमंत्रित करें, ताकि इस विषय पर हम और अधिक विस्तार से उनके अनुभव से, उनके जीवन से कहीं कुछ सीख सकें और प्रेरणा प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हमारे सहभागी हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं। और मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज मेरठ की धरती एक क्रांति की धरती रही है। मंगल पांडे जैसे शख्सियत
जिन्होंने 1857 की क्रांति का एक तरह से नेतृत्व किया था। तो एक ऐसे स्थान पर जो कॉलेज है, मुझे लगता है उस महिला शक्ति के पर्याय के रूप में ये गर्ल्स कॉलेज आने वाले समय में अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी पहचान को बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आगे की कार्रवाई के लिए डॉक्टर उषा साहब। Thank you, sir. उषा जी, सर्वेश जी मेरे ख्याल ज्वाइन कर लिया है। Yeah, I was about to ask this. Thank you so much, sir. And welcome, Dr. Dinesh Chand, the principal of Shahid Mangal Pandey Government Girls PG College. We have our annual function to be organized tomorrow, and due to all so many occupancies for that particular function, I know principal will not be able to be for the entire time duration, but he has assured me that he'll be here somehow managing to listen to the entire thing, because the topic is really relevant. Plus to that, the most important thing is Mission Shakti, जिसका हमारे महाविद्यालय ने बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रचार प्रसार भी किया है। और क्योंकि हमारा महिला महाविद्यालय है, तो हमारे यहाँ की छात्राओं ने अपनी प्राध्यापिकाओं और प्राध्यापकों के साथ मिलकर के हर मोर्चे पर उसका समर्थन किया है। और उसी एक श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड ये दूसरा वेबिनार शहीद मंगल पांडे गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ के तत्वावधान में कम्युनिकेशन टुडे के साथ कर रहे हैं। Yes, I can see Sarvesh ji is there. So I would like to call upon Sarvesh ji first. आपके बारे में बहुत सारे बातें ऑलरेडी प्रोफेसर भानावत बता चुके हैं, क्योंकि वो आप सभी से बहुत अच्छे तरह से व्यवहारिक तौर पर मिले हुए हैं, किंतु औपचारिक परिचय के लिए चूंकि मुझे ये काम सौंपा गया है, सो आई वुड लाइक टू डू दैट। सुश्री सर्वेश जी फोटो पत्रकार के रूप में पिछले कई वर्षों से अनेक मीडिया संगठनों के साथ कार्य कर रही हैं। आपने हिंदुस्तान टाइम्स समूह में स्टाफ फोटोग्राफर के रूप में लंबे समय तक काम किया है। इसके अतिरिक्त आपके फोटोज दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुके हैं। सर्वेश जी पिछले 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं। फोटो पत्रकार के रूप में आपने कारगिल वॉर व उत्तरकाशी और बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़े सूखे तथा अनेक महत्वपूर्ण त्योहारों को कवर किया है। मुख्य रूप से आपका कार्य क्षेत्र है जेंडर रिलेटेड मुद्दों पर कार्य करना। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सर्वेश जी लंबे समय से कार्य कर रही हैं। वर्तमान में आप एक स्वतंत्र प्रेस फोटोग्राफर के रूप में अनेक प्रकाशनों के साथ जुड़ी हुई हैं। इस समय मुख्यतः ट्रैवल फोटोग्राफी आपका शौक है। आपने इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया सहित अनेक देशों की यात्राएं की हैं। अनेक पर्वतारोही अभियानों से आप जुड़ी रही हैं और ट्रैकर के रूप में आपने विशेष ख्याति अर्जित की है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का भी सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। पत्र सूचना कार्यालय से आप स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकृत भी हैं। So we are fortunate to have such kind of personality amongst us. So I would like to call upon Sarvesh ji for her insights to be shared along with all the participants, those who are connected with us. Please, ma'am. सर सर्वेश जी हमें सुन नहीं पा रही है, मुझे लग रहा है। सर माइक अनम्यूट करिए। सर मुझे आप सुन पा रही हैं क्या आप? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। ये येती नाम से जो आ रहा है वही है ना सर्वेश जी का? हाँ मेरे ख्याल तो नो। ओके नो फाइन। सो प्रॉब्ली शी कुडंट गेट कनेक्टेड, तो हम दूसरे स्पीकर को बुलाएं। हाँ प्रियंका जी को बुलाइए थोड़ा। But then Yeti ji, I would like to give you a compliment. I could really feel that Sarvesh ji is sitting there. Nice personality. Okay, we'll proceed further because we couldn't have Sarvesh ji amongst us till now. So प्रियंका जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपका औपचारिक परिचय मैं पढ़ना चाहूंगी। लगभग 17 वर्ष नव भारत टाइम्स में पत्रकार रहने के बाद आपने अभी हेल्थ ओपीडी नाम से पोर्टल शुरू किया है। साथ ही ममंत्रा नाम से यूट्यूब चैनल भी आप चला रही हैं। वजह, इनका मानना है कि माँ ही बच्चे की सबसे पहली टीचर होती है। पहले हिंदुस्तान, नव भारत टाइम्स,
पंजाब केसरी और जनसत्ता जैसे अखबारों में संपादकीय पन्नों पर आपके कई लेख छपे हैं। लेखन में सामाजिक सरोकार, खासतौर पर महिलाओं से जुड़े मुद्दे और सेहत में विशेष रुचि है आपकी। नवभारत टाइम्स में इन्हीं विषयों पर खासतौर पर फोकस किया गया। महिलाओं के मुद्दे पर लिखने के चलते दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनसे खास तौर पर सलाह मांगी। मेट्रो में महिलाओं के लिए एक अलग डिब्बा होना चाहिए ताकि वे महफूज महसूस करें। अखबार के फ्रंट पेज पर छपी प्रियंका सिंह जी की इस खबर के बाद मेट्रो ने पिंक कोच की व्यवस्था की। उत्तराखंड की दो बहनों के दुनिया के 7 समिट फतह करने का सफरनामा हो या फिर स्टार्टअप के इस दौर में पति के कारोबार में पत्नी पार्टनर की कामयाबी, हर मुद्दे पर आपने लिखा और बखूबी लिखा। महिला सरोकारों से जुड़ी स्टोरीज के अलावा सेहत आपका सबसे प्रिय विषय है। सेहत पर लिखी आपकी स्टोरीज की लोकप्रियता का ही नतीजा था कि बाद में टाइम्स समूह ने उनके संकलन बनाकर एक किताब की शक्ल दी। नाम रखा डाइट और डाइटिंग। कुछ ही दिनों में किताब बेस्टसेलर बन गई। देश के तमाम टॉप डॉक्टरों की राय स्टोरीज में देखी जा सकती हैं, फिर चाहे डॉक्टर देवी शेट्टी हो या डॉक्टर एस.के. सरीन, डॉक्टर नरेश त्रेहान या फिर डॉक्टर अशोक सेठ। स्टोरी लिखते समय हमेशा इस बात का आप ख्याल रखती हैं कि इस रिपोर्ट से पाठक को क्या प्राप्त होगा। आपकी रिपोर्ट्स अलग अलग जगहों पर सराही गई और अवार्ड भी प्राप्त हुए। प्रियंका जी दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में स्नातक उपाधि प्राप्त किए हुए हैं और आपने पत्रकारिता की शिक्षा भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से प्राप्त की है। लिखने पढ़ने के अलावा आपकी अभिरुचि पेंटिंग और डिजाइनिंग में भी है। So we are fortunate to have you here with all these decorative feathers in your cap. Welcome you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Am I audible? Yes, perfectly. First of all, I want to say thanks to Communication Today for giving me this opportunity so that I can share my experiences. Actually, if we talk about challenges, तो I think challenge तो हर फील्ड में है, तो पत्रकारिता भी इससे अछूता नहीं है। खासकर अगर हम महिला पत्रकारों की बात करें तो उनके सामने जो चैलेंजेस है वो थोड़े ज्यादा होते हैं। कैसे? पहला चैलेंज तो ये होता है कि जब कोई पत्रकार के तौर पर एक प्रोफेशन को चुनने जाता है तो पहला चैलेंज वहीं खड़ा हो जाता है, क्योंकि अक्सर पूरे घर से ये आवाज आती है कि जर्नलिज्म ही क्यों, पत्रकारिता ही क्यों, ऐसा कोई प्रोफेशन क्यों नहीं हो सकता जिसमें कि आप अपने घर को भी पूरा टाइम दे पाओ, जिसमें एक फिक्स शेड्यूल हो, आपका जो फोकस है वो आपके करियर से ज्यादा आपकी फैमिली पर हो। दरअसल जब मैंने लगभग 2 दशक पहले जब जर्नलिज्म में ज्वाइन किया था तो उस वक्त तो ये बहुत सारी महिलाएं नहीं होती, सर ने भी ये बात बताई, अभी बहुत सारी महिलाएं नहीं थी इस क्षेत्र में। तो मेरा तो अनुभव बिल्कुल अलग था। जब मैंने नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया लगभग 17-18 साल पहले, तो मुझे जब कहा गया कि आपकी ड्यूटी होगी दिन के 2 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि 8 बजे आप घर कैसे वापस जाओगे, क्योंकि आपका माइंडसेट है कि आपकी ड्यूटी होगी सुबह के 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक। खैर ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज समझ में आई कि अखबार में या टीवी में अगर आप काम करते हैं तो आपका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता, आपके टाइमिंग्स जो होते हैं वो थोड़े लेट होते हैं, आप देर रात में, फिर वो 8 का 10 कब हुआ, 12 कब हुआ, वो धीरे धीरे आप जब प्रोफेशन में आते हैं तो उन सब चीजों से रूबरू होते हैं और यूज टू भी होते चले जाते हैं। तो ये तो रहा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आप जब नए होते हैं फील्ड में और आपको चीजें नहीं पता होती हैं कि किस तरह, तो आपके लिए कुछ चीजें सरप्राइजिंग होती हैं। लेकिन आज जो हालात हैं वो वैसे नहीं है। आज जो बच्चे आते हैं जर्नलिज्म में, जो लड़कियां आ रही हैं जो ज्वाइन कर रही हैं, वो सब मेंटली प्रिपेयर होती हैं, अच्छा खासा होमवर्क किया होता है उन्होंने, उनको सब कुछ चीजें नॉर्मली पता होती हैं कि अगर आप इस फील्ड में जाएंगे तो आपके चैलेंजेस क्या होंगे, आपके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। अब एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि घर और जो आपका करियर है या आपका प्रोफेशन है उसके बीच में जो तालमेल है, क्योंकि यूं तो हर कोई भी एक जॉब डिमांडिंग हो सकता है, लेकिन जर्नलिज्म में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑड आवर्स की वजह से, टाइमिंग की वजह से, और चूंकि इस प्रोफेशन की डिमांड ऐसी है कि उसकी वजह से आपके जो सर्टेनिटी होनी चाहिए, जो फिक्स टाइमिंग्स होनी चाहिए वो नहीं होते। और शायद यही वजह है कि किसी भी एक विमेन जर्नलिस्ट को तालमेल बिठाने में ज्यादा मुश्किलात होती हैं, ज्यादा मुश्किलें आती हैं बनिस्बती किसी दूसरे प्रोफेशनल के मुकाबले। अगर आप अपने प्रोफेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो घर कहीं पीछे छूट जाता है।
घर पर फोकस कर रहे हैं तो प्रोफेशन कहीं पीछे रह जाता है। इन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो बिठाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे सरप्राइजिंग तब होता है जबकि अगर आप ऑफिस में कोई फेवर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आप बराबरी की बात कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ बराबर है, आपकी एक्सपेक्टेशन भी बराबर है। अगर आप घर में कोई फेवर की उम्मीद करते हैं, घर में आते हैं, तो वो भी नहीं मिलता आमतौर पर महिलाओं को। बिल्कुल क्लियर कट एक माइंडसेट है अभी भी लोगों के मन में कि आपने जॉब किया, वहां तक बहुत बढ़िया था जब तक आप ऑफिस में थे, घर में आप लौट के आए हैं तो आप कलम वाली बाई नहीं, आपको काम वाली बाई होना चाहिए। और ये मैं आपको सही बता रही हूँ क्योंकि लोग की एक्सपेक्टेशन होती है कि जितने भी काम हैं आपके घर के वो आपकी प्रायोरिटी है, वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे जो सरप्राइजिंग या शॉकिंग चीज है वो ये है क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो 24/7 का है। खासतौर पर अगर हम मीडिया की बात करें तो किसी भी वक्त आपकी कोई ऐसी प्रोफेशनल जरूरत हो सकती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके ऑफिस को, कि आपको घर से भी वहां पर मौजूद रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो चैलेंज है वो बढ़ जाता है कि आप किस तरीके से घर में और अपने ऑफिस के बीच में तालमेल बैठाएं। बट मुझे लगता है कि अगर कोशिश की जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए मुश्किल नहीं है कि आपको सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी से मतलब है कि दोनों चीजें 50-50 नहीं हो सकता। यू हैव टू डिसाइड कि विच वन यू हैव टू टेक। 51 कौन सा 49 रहेगा? फैमिली 51 होगी या आपका प्रोफेशन 51 होगा? जैसे ही आप अपने दिमाग में ये चीज क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। क्योंकि जिस चीज को आपने थोड़ा सा पीछे छोड़ा है, हल्का सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर आपको वहां पर मतलब उस प्रोफेशन उस चीज में सॉरी उस फ्रंट पे आपको अपना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म करना है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है तो यहाँ आपको उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है। हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, हम लेडीज के साथ, हम लोग ऑलवेज सुपर वुमेन बनने की कोशिश करते हैं। हमें प्रोफेशन भी पूरा करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है, हमें घर में आकर के माँ भी बहुत अच्छा बनना है, पत्नी भी परफेक्ट बनना है। बस यही चीज है जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर कोई एक चीज, कोई एक फ्रंट थोड़ा छूट रहा है तो उस पर गिल्ट बिल्कुल फील ना करें, क्योंकि पूरी कोशिश करके भी दिन वही है, वही 24 घंटे हैं, उसी 24 घंटे में आपको सब चीजें मैनेज करनी है। तो जो पीछे छूट रहा है, जहां पे थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, उसको लेके गिल्ट बिल्कुल फील ना करें। और एक और चीज है जो कि आपकी राह को आसान कर सकती है, वो चीज है कि आप जब भी आपको जहां भी मदद की जरूरत हो, चाहे आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से मदद की जरूरत हो, चाहे आपके इन लॉ से मदद की जरूरत हो, आपके अपने पेरेंट्स से किसी तरह की मदद की जरूरत हो, तो वो मदद लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि ये फैमिली, ये पूरा परिवार, ये बच्चा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, तो फिर आपकी जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का है। दूसरा चैलेंज आता है मदरहुड का। जैसे ही आप शादी करते हैं, शादी के बाद जैसे आप मदर बनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि या तो आप अपने बच्चे के लिए किसी वजह से, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हैं, जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो एक गिल्ट जरूर रहता है मदर के मन में, और उसका आधा मन हमेशा बच्चे के साथ अटका होता है घर में कि बच्चा ठीक से पल रहा है, मेड जो है या घर में जो भी कोई है उसकी देखभाल ठीक से कर रहा है। दूसरी तरफ अगर वो अपना प्रोफेशन छोड़ देती है, कुछ एक ब्रेक ले लेती है, जो ये जो ब्रेक है ये अगेन उसके लिए एक सेटबैक हो जाता है प्रोफेशन में। क्योंकि जैसे ही आप 2 साल 3 साल का ब्रेक लेते हैं तो आपके जूनियर्स जो आपके पीछे होते हैं वो आपके ऊपर सीनियर बन के बैठ जाते हैं। फिर अगेन ये आपकी पर्सनैलिटी पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आपके अंदर एक डिप्रेशन आता है इन दोनों ही सिचुएशन में। अगर आप जॉब क्विट कर रहे हैं बच्चे के लिए तो भी आता है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आता है। तो ये एक दूसरा चैलेंज है। यहाँ इसका भी सॉल्यूशन मेरे हिसाब से है, इसका भी सॉल्यूशन यही है कि जो मैंने पहले बताया कि एक तो बच्चा सिर्फ आपका नहीं है, ये आप अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लें, पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मैंने अपने बच्चे के लिए, अपने करियर को मुझे एक ब्रेक देना है, तो आप उसके लिए भी गिल्ट फील ना करें और ना ही उसके लिए किसी तरह का पछतावा आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप मदर हैं और ये आपने खुद से, ये आपकी चॉइस है। तो इसलिए यहां भी आप एक छोटे ब्रेक के बाद अपने करियर को फिर से शुरू कर सकते हैं। एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज इसमें, सॉरी मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, कि जो मदरहुड वाली बात थी, ये मेरे अपने साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैंने लगभग आपसे 11-12 साल पहले मेरी शादी हुई, मुझे कहीं से बहुत अच्छा एक ऑफर मिला था, और जब मैं वहाँ इंटरव्यू करने के लिए गई, बहुत सीनियर पोजीशन की बात थी,
तो उन्होंने मुझे बुलाया था मेरे अपने काम को देखकर। जब मैं वहाँ बात करने गई तो बाद में रिस्पांस वहाँ से पॉजिटिव नहीं आया, तो मैंने पूछा कि हुआ क्या था, क्योंकि मुझे तो खुद से बुलाया गया था और बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू भी रहा, इंट्रैक्शन भी, और जिन्होंने इंटरव्यू लिया था बहुत इंप्रेस थी। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि सिलेक्शन नहीं हुआ? तो इसका जवाब मुझे यही सुनने को मिला कि उनके मन में कहीं ये था कि इनकी अब शादी हुई है तो ये फैमिली प्लान करेंगी, तो ये एक मैटरनिटी लीव लेंगी और एक लंबे ब्रेक पर जाएंगी। तो ये जो लंबा ब्रेक है ये कहीं ना कहीं मेरा जो भी प्रोडक्ट है या जिसके लिए मैं इनको लाना चाहती हूँ, जहाँ पे ज्वाइन कराना चाहती हूँ, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। तो एज अ मदर, एज अ वुमेन, ये बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर आपका पैरामीटर सिर्फ ये हो जाए कि आप कल को बच्चा प्लान करते हैं, आप एक बच्चे को लेकर इस दुनिया में आते हैं और उसकी वजह से आपके प्रोफेशन में एक झटका आता है, एक ठहराव आती है, एक रुकावट आता है, या आपको माना जाता है कि आप इस लायक नहीं है, इस प्रोफेशन के लायक, इस काम के लायक, तो ये चीज कहीं ना कहीं हर्ट करती है। और मुझे लगता है कि ये बहुत कॉमन है, ये बहुत सारे लोग के साथ कभी ना कभी जरूर आई होगी ये वाला प्रॉब्लम। अगर हम ये फैमिली से बाहर निकलते हैं तो आता है एक दूसरा बड़ा चैलेंज, और वो आता है आपके ऑफिस का चैलेंज। आप अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि आज भी जब विमेन जर्नलिस्ट होती हैं तो नॉर्मली वो जैसे सॉफ्ट चीजें होती हैं, जो बीट्स होती हैं, एनवायरमेंट हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, या इसी तरह की जो हल्की फुल्की चीजें हैं, उन सब पे विमेन जर्नलिस्ट को नॉर्मली असाइन किया जाता है, प्रेफरेंस वही होती है। स्पोर्ट्स, क्राइम, पॉलिटिक्स वगैरह में अभी भी विमेन जर्नलिस्ट रिलेटिवली काफी कम है, वहां पर मेल जर्नलिस्ट को ही प्रेफरेंस दी जाती है। दूसरा एक डिस्क्रिमिनेशन जो कई बार सामने आता है, कई बार सामने नहीं भी आ पाता, वो आता है सैलरी का। सैलरी में भी कई बार अंतर देखने को मिलता है, हालांकि ये बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियस नहीं है और हर जगह पे ऐसा नहीं होता है, बट कुछ कुछ मामलों में ये चीज भी सुनने को और देखने को मिलती है। एक और चीज जो होती है कि बाहर के जो असाइनमेंट्स होते हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए, तो नॉर्मली विमेन जर्नलिस्ट को प्रेफर नहीं किया जाता। अब उसमें इसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो ये होता है कि आमतौर पर ये माना जाता है कि ये बाहर जाएंगी, खासतौर पे अगर मेल का एक पूरा मेल जर्नलिस्ट का एक ग्रुप है, तो उनमें लोगों को लगता है कि इनको साथ रखने से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, या आपकी फ्रीडम वैसी नहीं होगी, आप जो कुछ करना चाहते हैं फ्री होकर के, वो किसी फीमेल के साथ होने से कहीं ना कहीं आपकी लिबर्टी कर्टेल होगी। कई बार जो लेडीज फील्ड में जाती हैं उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम का मतलब सामना करना पड़ता है, ये बात सच है और ये प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ कोई बहुत तब्दीली हो गई है, आपको वॉशरूम की जरूरत हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है, तो वो सारी प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं महिला जर्नलिस्ट जो होती हैं, वेमेन जर्नलिस्ट, उनके सामने आती हैं। यहाँ पर एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी वो ये है कि कई बार ऑफिस के अंदर महिला जर्नलिस्ट से दूसरे तरह के फेवर की भी उम्मीद की जाती है। कई कुछ सेक्सुअल फेवर्स हो सकते हैं, कुछ और फेवर हो सकते हैं, उस तरह के फेवर्स की भी उम्मीद की जा सकती की जाती है इनफैक्ट। अब इसके भी दो एस्पेक्ट आते हैं। दो एस्पेक्ट ये है कि अगर आप उस तरह के इंसान नहीं है, आपकी अपनी प्रायोरिटीज हैं, आप जानते हैं कि आपको अपनी काबिलियत पर आगे बढ़ना है, तो हो सकता है कि आपके लिए जो रास्ता है तरक्की का वो थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाता है। आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। ये आपको तय करना है कि आप अपनी काबिलियत के भरोसे आगे बढ़ना चाहते हैं या आप दूसरे तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करके। यहाँ पर जो मैंने दूसरा एस्पेक्ट बताया था वो कई बार इस तरीके से सामने आता है कि कई बार जो लोग कॉम्प्रोमाइजेस के लिए तैयार नहीं होते हैं तो उनको कुछ चीजें फेस करनी पड़ती हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, कुछ हैरेसमेंट्स उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप क्या चाहती हैं खुद से, आप किन शर्तों पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने ये तय कर लिया कि आप अपनी काबिलियत के भरोसे आगे बढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको रोक सके। अगर एक ऑफिस में आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, वहां अपनी क्षमता दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से ये भी लेकिन प्रॉब्लम है जो कि कई बार इनफैक्ट एक रिसर्च भी हुई है जिसपे ये कहा गया है, ये रिसर्च की थी इंटरनेशनल सेफ्टी इंस्टीट्यूट ने, एक ग्लोबल सर्वे किया था 2014 में। इसमें इन्होंने, इनका जो आउटकम था, लगभग 1000 विमेन जर्नलिस्ट पर इन्होंने सर्वे किया था। इनका आउटकम यही था कि 60% ने माना था कि वर्क प्लेस में किसी ना किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या किसी ना किसी तरह का वायलेंस उन्हें कभी ना कभी उन्होंने जरूर झेला है। और ये जो था ये ग्लोबल सर्वे था, हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। एक दूसरा सर्वे था जिसमें कि 80% वुमेन जर्नलिस्ट ने माना कि लाइफ में कभी ना कभी वो ट्रॉमा जरूर फेस करती हैं। और वो ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि आपके प्रोफेशन और आपके घर के बीच तालमेल का हो सकता है, आपके जो मेल कोलीग्स को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है उसका हो सकता है, आपके हेक्टिक शेड्यूल जो हैं वो भी इस पर असर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं ये सारे सर्वे, ये सारे रिसर्च बताते हैं कि वुमेन जर्नलिस्ट का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी और वो ये है कि आजकल के टाइम में सोशल मीडिया का चैलेंज एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
हम लोग के सामने, क्योंकि मैंने यहाँ मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैंने खुद से ये चीज, कई वुमेन जर्नलिस्ट हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखा, और वो जो आपकी जो एक ट्रोल ब्रिगेड है, उसको वो टॉपिक समझ नहीं आया या उनकी पसंद का नहीं है, तो उनकी इस तरह की ट्रोलिंग उस पर होती है कि उनको रेप से लेकर के, डेथ से लेकर के, यहाँ तक कि उनके बच्चे की, छोटे बच्चे जो हैं मतलब उनकी बच्चियों के साथ रेप करने तक के भी जो कमेंट है वो सब उस पर लिखा जाता है, ट्रोलिंग की जाती है। तो ये एक इतना मेंटल टॉर्चर होता है इस तरीके से कि अगर आप कुछ भी चीज अपनी पसंद की, अपनी बात, अपनी आवाज उठाना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, तो कई बार उसके लिए भी आपको शिकार होना पड़ता है ट्रोलिंग का। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि हम लोग वुमेन जर्नलिस्ट के सामने हैं, लेकिन मुझे फिर भी पूरा मेरा यकीन है कि चूंकि सीन काफी बदला है, सिनेरियो। जब मैंने नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया था तो हार्डली आई थिंक 3 या 4 महिलाएं थी वहां पर, मुश्किल से। आज की डेट में जब मैंने नवभारत टाइम्स छोड़ा है तो उस टाइम पर उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। अभी मुझे काउंटिंग तो याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट थे अलग, लेकिन संख्या जो थी वो काफी ज्यादा थी। तो वो जो अंतर है वो मैंने खुद से भी अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है कि किस तरीके से भागीदारी बढ़ रही है महिलाओं की। 2005 में बिहार में एक डायरेक्टर, किसी ने ये सर्वे किया था शायद, कि वहां पर जो जर्नलिस्ट थे उनकी डायरेक्टरी थी, उसमें 400 जो थे वो मेल जर्नलिस्ट के नाम थे, उसमें सिर्फ 4 महिलाएं थी, और इन 4 में से भी रिपोर्टिंग करने वाली इकलौती महिला थी। लेकिन ये 2005 की बात है। आज जो है सीन काफी बदल चुका है। एक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, HT में अभी 2017 में एक सर्वे किया गया, तो उसमें देखा गया था कि फ्रंट पेज पे जो लीड आपकी खबरें हैं, या फिर फ्रंट पेज की जो खबरें हैं वो हम कह सकते हैं, उसमें विमेन जर्नलिस्ट की भागीदारी कितनी है। तो बहुत ही हैरत अंगेज एक चीज सामने आई, वो ये थी कि HT जैसे अखबार में 49.5% जो बाइलाइंस थी फ्रंट पेज पे वो विमेन जर्नलिस्ट की थी। और उसी तरीके से एक्सप्रेस में ये जो डाटा था ये लगभग 40.9% तक गया। ऐसे ही दूसरी चीजों के भी उन्होंने मतलब सर्वे किए बहुत सारे अखबारों की। तो ये बहुत ही अच्छे और वेलकमिंग डेटा है कि चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी जो चीजें हैं वो बदल रही हैं, आउटकम जो है वो बेटर हो रहा है। अगर हम इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इनके अपने सॉल्यूशन हम खुद निकालने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम आराम से अपने फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। और उसे हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जरूरत है तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास की। अगर ये आत्मविश्वास है, आपको पूरा भरोसा है, आप अच्छा होमवर्क करते हैं, आप बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम करते हैं, तो फिर आपकी जो कलम की जो ताकत है उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। Thank you, Priyanka ji. Well said, and started with optimism. आपकी बातचीत ने जोश भर दिया, और yes, of course, without that nobody can achieve anything. Rather, we cannot even step forward for one single step. So that was wonderfully talked about. और बहुत ही अच्छा लगा, कलम वाली बाई नहीं, काम वाली बाई. But with an optimism, you said that things are changing. और ये भी बहुत सराहनीय है। और हमारे अपने जो बच्चे हैं, हमारे महाविद्यालय में जो छात्राएं पढ़ रही हैं, ये जो चेंज की आप बात कर रहे हो, ये हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चों में वो एक स्ट्रेंथ है, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, वो आगे आकर बोलते भी हैं, एंड दे नो द प्रॉस एंड कॉन्स। एंड ऑफ कोर्स देयर आर प्रॉब्लम्स, जैसा कि चैट बॉक्स में मैं देख सकती हूँ डॉक्टर अर्चना भारती जो बातें, अपने जो थॉट्स लिख रही हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म ओपन रखा हुआ है, एनीबडी कैन राइट एनीथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक। तो उनका कहना है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि महिलाएं सशक्त हैं, उसके बावजूद भी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और उसी के पैरेलल आपका ये कथन कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन हम उनको सॉल्व करने के लिए खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं और निरंतर इस ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। Yes, true. So we have to be optimistic, and problems मतलब हर क्षेत्र में हैं, और कैसे उनसे फाइट करना है, slowly and gradually we will learn it, and we are learning it in a nice and strong way. Plus जो break वाली बात बोली, which is very 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 obvious, and everywhere we are finding this. The moment the woman gets into some kind of assignment other than the professional assignment, if it is personal assignment, things change. लोगों का प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में चीज हो जाती है कि नहीं, ये अभी उस स्थिति में नहीं है, इनको हटा दिया जाए और बाद में देखा जाएगा और किसी और को ला दिया जाए। अगर हम बहुत नेचुरल वे में भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें, सो दैट इज ऑब्वियस। घर में भी अगर हमें पता है कि 4 लोग हैं किसी काम में सपोर्ट करने वाले, एक व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, तो हम यही
करेंगे कि दूसरे वाले को चांस दे दें, बट अगेन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट फ्रॉम योर एंड कि यू कैन ऑलवेज कम बैक and get into the race, which is possible. So wonderfully talked about the entire thing, और आपने बिल्कुल practical points को उठाया, which is remarkable. Thank you so much प्रियंका जी, it was lovely. आपके वक्तव्य के बाद अब मैं बुलाना चाहूंगी भावना वाल जी को। भावना वाल पिछले 20 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ी रही। पत्रकारिता की शुरुआत इन्होंने नेशंस एंड वर्ल्ड नामक पत्रिका में सब एडिटर के रूप में की। उसके बाद वे एशियन एज अखबार से साथ जुड़ी और बाद में पुणे में इंडियन एक्सप्रेस में आपने कार्य करना शुरू किया। एशिया की सबसे बड़ी समाचार समिति पीटीआई के साथ भी आपकी लंबी पारी रही। उसके बाद इंदौर में डीएनए के साथ जुड़ी और कालांतर में हिंदुस्तान टाइम्स के बरेली और रुहेलखंड संस्करणों में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में आपने कार्य किया। आगरा और लखनऊ से एचटी लाइव और एचटी सिटी की शुरुआत करने का श्रेय भावना वाल जी को जाता है। पत्रकारिता के करियर में यूं तो अनेक प्रमुख घटनाओं को कवर करने का आपको श्रेय जाता है, लेकिन 2009 में लोकसभा चुनावों के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ आदि विभिन्न जिलों की चुनाव रिपोर्टिंग भी की है। आपको 2010 में बेस्ट जर्नलिस्ट और बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। 2002 में बार्सिलोना में एक विशेष मीडिया फेलोशिप के लिए भी आपका चयन हुआ। लखनऊ के आकाशवाणी और दूरदर्शन से आप नियमित रूप से प्रसारित होती रही हैं। आपने पत्रकारिता और जनसंचार में मास्टर्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स में भी डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त की है। वर्तमान में आप लखनऊ के पीजी विश्वविद्यालय से अपना शोध कार्य कर रही हैं। आपका स्वागत है भावना वाल जी। आपके विचार सुनने को आतुर हैं सभी। माइक अनम्यूट करिए मैम। माइक कैन आई बी हर्ड? कैन आई यस ऑडिबल? यस 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 परफेक्ट। थैंक यू उषा जी, इतना आपने मेरी तारीफ करी। थैंक यू सो मच एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई थैंक डॉक्टर भानुवत एंड कम्युनिकेशन टुडे that he asked me to take part in this discussion. It is also an honor to listen to the views of such eminent persons like Priyanka ji, Sarvesh ji and Manisha ji. And yes, when we talk about opportunities and challenges before women journalists, जैसे प्रियंका जी ने कहा कि सभी like any profession, पत्रकारिता में भी अपने challenges हैं। और जब मेरा पार्टिसिपेशन भानुवत सर ने मुझे इनवाइट करा तो इट सेट मी थिंकिंग कि जब हम लोग ने अपना करियर 20 साल पहले शुरू किया था तो उस वक्त इतना एक्सपेंस नहीं था। जैसे आजकल बच्चे बिल्कुल दे आर अवेयर ऑफ द प्रोस एंड कॉन्स, तो उस वक्त इतना बड़ा एक्सपेंस नहीं था। हम लोग बहुत ही यंग थे, 21-22 साल के थे, कोई बताने वाला नहीं था करियर में। बस ये एक था कि हाँ भाई आप लिखना जानती हैं, थोड़ा बहुत आप लोकल न्यूज़पेपर्स में लिखती हैं, तो अगर आप करियर बनाना चाहती हैं तो हाँ आप किसी पेपर से जुड़ जाइए या किसी लोकल मैगजीन से आप जुड़ जाइए और आप अपना धीरे धीरे उसमें अपना आगे करियर ग्रोथ देख सकते हैं। और जब मैंने अपना करियर कमेंस करा, मैं लखनऊ से ही हूँ, इन अ स्मॉल सिटी लाइक लखनऊ, तो वहां पे हम लोगों को इतना कोई अपॉर्चुनिटी या कोई गाइड करने वाला नहीं था। कोई बीजेएमसी एमजेएमसी टाइप के कोर्सेज भी नहीं होते थे। बस ये होता था कि हाँ भाई आपने कर लिया, आप लिख रही हैं, ये एक नेचुरल टैलेंट है आप में। और आपके जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ के, उस जमाने में ये होता था कि एडिटर से जाके मिलिए, उनसे बात करिए, धीरे धीरे आप एक फ्रीलांसर एक स्ट्रिंगर के तौर पे वहां काम करते थे और काम उनको अगर अच्छा लगता था तो वो धीरे धीरे आपको अब्सॉर्ब कर लेते थे। लेकिन लखनऊ में मैंने देखा कि अगर करियर पुश करना है तो ज्यादा इतना अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, तो उसके लिए फिर एक ही ऑप्शन बचता था कि मैं न्यू दिल्ली जाऊं, विच वाज द नेक्स्ट बिग सिटी आफ्टर लखनऊ। और अगर मुझे अपने जर्नलिज्म को विंग्स, करियर को विंग्स देने हैं तो जाहिर सी बात है कि आई शुड ट्राई माई लक इन न्यू दिल्ली, क्योंकि वो फैमिली के हिसाब से भी अप्रोचेबल सिटी थी और बगल में ही थी, आना जाना भी कन्वीनियंट रहता था। तो उसके बाद जैसा आपने कहा कि मैंने अपना करियर नेशन एंड द वर्ल्ड मैगजीन से शुरू किया, वो निजामुद्दीन एरिया में उस जमाने में थी, और वहां पे उन्होंने एडवर्टाइज करा था 2 जूनियर रिपोर्टर्स कम सब एडिटर्स के लिए। तो एक रिटन टेस्ट हुआ था और उन्होंने रेज्यूमे मेरा लिया, रिटन टेस्ट हुआ और उसके बाद मुझे बताया गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है एंड वेरी सून आई जॉइंड।
जब मैंने वहां पे ज्वाइन किया तो मैंने ये रियलाइज करा कि इन अ स्टाफ ऑफ 10 to 12 people, I was the only female staffer. अब फॉर अ यंग गर्ल ऑफ 21-22 आप समझ सकते हैं कि उसके लिए जो घर से नई नई निकली हुई एक जर्नलिज्म जैसी करियर में आने के लिए इन अ पब्लिक ओरिएंटेड प्रोफेशन, उसमें कितना उसको नर्वस रही होगी, कोई उसको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ट्रेनिंग तो कोई थी नहीं, जैसे आजकल के बच्चे बिल्कुल अपने प्रोस एंड कॉन्स के साथ प्रिपेयर्ड रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आई स्टार्टेड पिकिंग इट अप, और उसके बाद एक हमारे जो दूसरे फेलो रिपोर्टर थे उसका हमें ये बताया गया, वो एक बॉय था जिसका अपॉइंटमेंट एक टेस्ट से नहीं एक रिकमेंडेशन से हुआ था, क्योंकि उसके फादर नॉर्थ कैलकाटा से एमपी थे, और उन्होंने सिर्फ क्योंकि एमपी थे उसके पापा, तो उनका रिकमेंडेशन से उसने कोई रिटन टेस्ट नहीं और उसका अपॉइंटमेंट हो गया था। लेकिन तब मेरे दिमाग में इतना तो चला कि हाँ भाई ठीक है, मेरा रिटन टेस्ट हुआ, उसका कोई रिटन टेस्ट नहीं हुआ, और वो उसको प्रेफरेंस दिया गया ओवर सो मेनी अदर्स हु हैड टेकन द रिटन टेस्ट, कि बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, तो उसके लिए पूरी जमीन तैयार कर दी गई थी। मुझे ऐसा लगा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि मुझे ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मुझे मेरे मेरिट पे सिलेक्ट किया गया था, एंड इवन नॉट विथ स्टैंडिंग द फैक्ट दैट आई वाज अ गर्ल। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं देखा था। लेकिन जब हम लोग ने काम करना शुरू किया, चाहे वो सब एडिटर का हो, चाहे रिपोर्ट, हम लोग को बीट्स पे मिली क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड हम लोगों का चल रहा था, तब हमने देखा कि दिस बिकेम एन आई ओपनर फॉर मी। जो भी मेरा अंदाजा था इस डेवलपमेंट के बारे में कि उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मुझे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, वो क्योंकि एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से है, वो बिल्कुल बिलाए हो गए। बिकॉज व्हेन द मैगजीन, इट वाज अ फोर्टनाइटली मैगजीन, एंड व्हेन our articles were starting to getting published, मैंने ये देखा कि my articles got preference over his, and most of the time he was told by the editor to rework on his article and then it would be published in the next issue. Now, why I am giving this example? My motive of giving this example is to simply highlight the point that it is the talent and hard work that go a long way in presenting opportunities for any incumbent, irrespective of in whatever profession you are as a woman. और हम लोग क्योंकि जर्नलिज्म की बातें कर रहे हैं, तो हम लोग जर्नलिज्म में भी इसको एक अपॉर्चुनिटी, चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानकर अगर चलें, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा एक इंसाइट हो सकता है। मेरा मानना यह है कि नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन अ लेडी जर्नलिस्ट फाइंड्स हरसेल्फ सराउंडेड विद, it is the talent and the hard work that will pave the path of a career. Of course, the lady will be tested. She will be tested because, as Priyanka ji said, that the males are more than the females in any team or in any staff. But if the lady is determined, she is willing to take on the opportunities that are coming her way, then she can overcome any challenge and success will be at her doorstep. In fact, as I moved on in my career and got opportunities to rise in my career, my experiences tell me that all the opportunities that I got alongside my male colleagues, they were at par with them. मुझे कोई ऐसा differentiation नहीं मिला। हाँ, definitely as a woman पहले doubt होता था कि आप एक lady हैं, क्या आप ये field assignment कर पाएंगी, क्या आप ये अकेले जाके वहां पे ये कवर कर पाएंगी, क्या आप जाके वहां पे अपना अकेले ही पूरा रिपोर्ट फाइल करके कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी। एंड दिस इज व्हेन मैं एज अ जर्नलिस्ट आई डिड नॉट इवन हैव माय ओन ट्रांसपोर्टेशन, आई यूज्ड टू कम्यूट बाय पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो इतने डाउट होते थे, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट हमने बिल्कुल जैसे अर्जुन ने अपनी मछली की आंख पे सिर्फ नजर रखी, मैंने सिर्फ अपने टारगेट पे नजर रखी, दैट इट इज अ चैलेंज। As a woman, you have to doubly prove yourself. And so that way हमने बस उसको ये देखा कि ये चैलेंज है, इसको अपॉर्चुनिटी में बदलो। लोग आपको ये देखें कि that being a woman is not a handicap. It is in fact an advantage that you can take off and you can rise more better than your male colleagues. और resultantly ऐसा होता था कि जब field assignments में when I started proving myself, so much so that I was given independent charges of Agra and Bareilly, that I got good breaking stories that my male colleagues started appreciating me, and when I was lauded by my editors along the way,
तो उन्होंने ये भी देखा कि भाई इतनी तारीफ, इतना शी इज वर्किंग हार्ड, बिकॉज आई प्रूव माई सेल्फ. मैंने कोई अपनी पर्सनल लाइफ को उसमें इन्वॉल्व नहीं करा. पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, फैमिली लाइफ अपनी जगह है. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट yes, I am not married, so in a way yes, I could concentrate more on my career, but otherwise I did have my own home life also. And then gradually as an individual, when I started proving myself, I realized that I was never felt to be separate from the team, either by my editor or my opportunities. In fact, my male colleagues used to help me out कि अच्छा आपको ये field assignment करना है तो चलिए हम आपको ऐसे करके help कर सकते हैं. In fact, I got, because of this opportunity or this challenge that we can talk about, I would call it a challenge, which I turned into an opportunity for myself. I got opportunities to launch publications within the newspapers. And because the hard work was there, so much so that the editors, who were generally males in those times, they published my name in the print line. और ये as a girl, it was a very very मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी कि जहां पे एडिटर का नाम प्रिंट लाइन में आ रहा है, लगे हाथ हमारा भी नाम उनके साथ प्रिंट लाइन में छप रहा है, एंड दैट टू इन अ पेपर लाइक द इंडियन एक्सप्रेस. तो उसमें जो विद इन पब्लिकेशन जो हम लोग फोर्टनाइटली और वीकली पब्लिकेशन जो मैंने लॉन्च करे, उसमें इट वाज वेरी वेरी हार्टनिंग, वेरी 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 मोटिवेशनल फॉर मी दैट यस कि challenges हैं. You don't have to think that you are a lady. You have to just move on because you have to doubly prove yourself as a woman. So even during the field assignments, which might consider whether a lady can do them or not, even those challenges, as I said, that I converted them into opportunities for myself. ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोरल बूस्टर था, मेंटल बूस्टर था कि the more you push the envelope further, the mental strengthening you get. And as Priyanka ji said कि वो 49 और 51 का होता है, choices आपको make करनी पड़ती हैं कि आपको priority क्या देना है. Yes, फैमिली लाइफ अपनी जगह है, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह है, ऑड वर्किंग आवर्स होते हैं. और जब आप नए नए आए थे तो उसमें जब आपको बताया गया कि आपको रात के 10 बजे भी रुकना है, रात के 11 बजे भी रुकना है, तो यस, इट वाज दैट मेंटल सेटअप हैड टू बी चेंज फ्रॉम अ रूटीन फ्रॉम अ 9 to 5 to working at odd hours. So what with overcoming these kind of challenges, what I would look at is कि आजकल के जो बच्चे बिल्कुल इतना वाइड आइड, इतने ब्राइट आइड और आगे वो निकल रहे हैं प्रोफेशन में, वो दे एक्चुअली आर मोर इक्विप्ड, बिकॉज हम लोग के जमाने में इतनी हम लोगों को नॉलेज नहीं होती थी. वी डिड नॉट हैव करियर गाइडेंस और पीपल टू टेल अस. वी जस्ट यूज्ड टू सी आवर सीनियर्स एंड वी जस्ट यूज्ड टू पिक अप फ्रॉम देम. हम लोग को तो कोई जर्नलिस्टिक ट्रेनिंग भी नहीं होती थी. सो वी जस्ट पिक्ड अप एज वी वेंट अलोंग. आजकल के बच्चों को एक डिजाइनर प्लेटफॉर्म, so to speak, mil gaya hai. They're trained in the BJMC, they're trained in the MJMC, so they know that what they're talking about. Yes, all said and done, that for women journalists, for young girls, the challenges are more, but comparatively, as more and more women journalists and as more and more young women are coming out into the arena and they are taking up journalism in every department of the publication or the social media, it is very heartening that the opportunities and challenges for women, all said and done, are kind of getting light. And yes, they have to and they're feeling they're getting more empowered than anything else. This is my I would like to share. Thank you so much. Right, thank you so much, Bhavna ji. I don't know why it's so wonderful that I could feel that optimism, that spirit of positivity with both of you. It's Usha ji, optimism is the only weapon that will make you go along, because if you start treating a problem as a problem, then you can't overcome that. I mean, you have to take the challenge as an opportunity. And once you take that as an opportunity, then you automatically realize कि हाँ, ये मेरे लिए challenge है, मैं इसको overcome करके दिखाऊंगी. And of course, we know that as women, we need to doubly prove ourselves because we will not be taken lightly. Yes, definitely during in the staff, there are sniggers,
there are jealousies, you have to doubly prove yourself. जब आपके मेल कोलीग को प्रमोशन मिलता है और आपको प्रमोशन नहीं मिलता है, जब आप उसी डेजिग्नेशन पे आपको आपके मेल कोलीग को वो सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, आपको सिर्फ 5% इंक्रीमेंट मिलता है और आपके कोलीग को 20% मिलता है, then how do you face it? It is simply through hard work and through hard work. That is the only way you can pave the path for yourself. And this is what my career growth has taught me. इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि मैम ने बोला है, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आप पूरे अपने हार्ड वर्क के साथ, अपना पूरी कोशिश, पूरे एफर्ट के साथ जब आप कुछ अचीव करते हैं, तो एक कमेंट है जो बहुत कॉमन है पर्टिकुलर इस फील्ड में, ये सुनने के लिए मिलता है, अरे ये तो लड़की है, इनको तो मिल ही जाएगा। So ये अगेन ये बहुत ही मतलब आपको पिंचिंग कॉम्प्लीमेंट, मतलब कमेंट, नॉट अ कॉम्प्लीमेंट, कमेंट होता है जो कि आपको लगता है कि आपकी पूरी मेहनत, आपके पूरे एफर्ट को इसने जीरो कर दिया और आपकी जो डिग्निटी है एज ए वुमेन, उस पर भी ये क्वेश्चन उठाता है। तो ये फिर एक ऐसे जो माइंडसेट है, इस पर हम लोग को जरूर काम करने की जरूरत है। आई थिंक जितनी ज्यादा लड़कियां, जितनी ज्यादा औरतें इसको ज्वाइन करेंगी, उतना जल्दी हम लोग इस तरह के माइंडसेट से बाहर निकल सकते हैं। और हम लोग के जमाने में इतना माइंडसेट बहुत फाइट करना पड़ता था, बहुत डॉगमेटिक होता था, बहुत ज्यादा, हम लोग को तो बताने वाला कोई नहीं था। भावना जी, अपना जमाना मत बोलिए, you are as energetic at this moment and you're giving all those vibrations. See the chat box, how people are reacting, they are talking all, they're putting, see one of the comment is there, even I have faced problems in professional career, in my reporting career, and this particular session they are trying to get the idea that this is refreshing, because the problems anywhere, of course we are talking about the journalistic career, but the problems, here and there, they exist and they are same. So the optimism and the positivity, that is the main thing which can really crib all these nuisances that is happening in all these worlds. Plus to that, then the word you used, doubly prove. But dil dukh, madam, ye wali baat, ye word sun karke na, this doubly proved is, itself we are accepting it as if or kitna, because exactly, that's Priyanka ji is giving a smile and she's understanding that what she has gone through, and probably the chat box is getting those vibrations as well. Priyanka ji has to triply prove herself because she has a family, she's a married lady. Yahan pe at least but then everybody being with all these family issues and everything, I feel like these are the issues with everyone, if not kids, not husband, even then it is there, because then you are responsible for your elderly parents. So somehow these relations and these things matter. और थोड़ा easy, थोड़ा क्या मतलब काफी easy हो, जो doubly और single वाला जो आप statement बोल रहे हो ना, that becomes very easy, because I don't want to quote it here, but it is obvious that you don't usually get this, doubly wala, that is half maybe. So anyway, मैं इस पूरे communication में, I wish, because Professor Bhanawat is the one who is actually a giant one for these things, I would like आप हमारे साथ बात करें सर, और इसको और lively बनाएं, जिस तरह से भावना जी और प्रियंका जी हमारे साथ हैं, आप भी अपनी बातें हमारे सामने रखें सर, it will be very now probably मैं अभी अपनी थोड़ी बाद में रखूंगा, लेकिन अभी हमारे दो एक्सपर्ट शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं। मनीषा जी आप जुड़ गई हैं क्या? नहीं जुड़ी है शायद, सर्वेश जी भी कोशिश कर रही हैं, तो शायद वो भी नहीं जुड़ पा रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी जो हमारी लिस्ट पार्टिसिपेंट्स की है, उसमें सोलापुर महाराष्ट्र के डॉक्टर रवि चिंचोलकर, जो वहाँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के हेड हैं, जिनके यहाँ मैं करीब 7-8 साल पहले गया था एक सेमिनार में। यदि चिंचोलकर जी आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ अपने विचार महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में रख सकें, तो बात कर सकते हैं। चैट लिस्ट में मुझे कई नाम दिख रहे हैं, डॉक्टर जयती शर्मा, शायद अभी डॉक्टर जयश्री जेठवानी जी, जो शायद प्रियंका जी की भी टीचर रही होंगी, जब वो कोर्स कर रही थी, उनको भी मैंने कुछ समय नाम देखा था उनका। यदि वो भी हो तो हम चाहते हैं कि वो भी बात करें। रविंद्र जी इज देयर। हाँ ठीक है। रवि जी, हाँ गुड इवनिंग। हाँ साहब, आप कुछ कहिए ना। हाँ सर, आपने एक महत्वपूर्ण विषय पर आज ये सेमिनार आयोजित किया है, और हम जो भी यहाँ विचार प्रकट किए गए हैं, इससे हम सहमत है। और हमारे यहाँ भी हम कोशिश करते हैं हमारे डिपार्टमेंट से हमेशा
ऐसे एक्टिविटीज जो हो जिसमें जेंडर इक्वलिटी के बारे में कुछ न कुछ आगे काम हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमने पब्लिक रिलेशन के बारे में भी नेशनल सेमिनार लिया था। तो उसमें भी हमने इसी बात पर जोर दिया था कि हर फील्ड में अगर महिलाएं सामने आती है तो अभी ऐसा तो कुछ नहीं है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती, कोई हर काम कर सकता है। लेकिन अभी भी कुछ फील्ड में महिलाओं को कम माना जाता है, उन्हें कम तनख्वाह दी जाती है। मेनली जो अपना प्रिंट मीडिया है उसमें महिलाओं को जब जॉब देने की बात आती है तो एडिटर्स कहते हैं कि महिलाएं ड्यूटी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ भागदौड़ करनी पड़ती है, शाम में देर तक काम करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो अलग चित्र दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो महिला बहुत सारा और अच्छा काम करती है। बहुत सारी महिलाएं अच्छी पत्रकार बोल के सामने उभरी है। I think network issue is there. आवाज चलिए, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर आभा शर्मा जयपुर से ही हैं। आभा जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जर्नलिज्म में इनकी बहुत लंबी इनिंग रही है और कई महत्वपूर्ण अखबारों के साथ काम किया है। आभा जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे दिख तो रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर आभा शर्मा। डेक्कन हेरल्ड के साथ भी जुड़ी रही और बीबीसी के साथ भी, शायद इन दोनों में बीबीसी के साथ जुड़ी हुई हैं और मेरी पड़ोस में रहती हुई हैं, इसलिए मेरा इनसे बहुत पुराना परिचय है, इनके कार्यों को, और डेवलपमेंट इश्यूज बहुत लिखा है आपने। आभा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? Who raised a hand? Somebody has raised hand. हाँ आभा जी, आप बोलिए। आप माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। She has raised her hand. She wants to say something. I think network issue is there. Connect नहीं हो पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। नहीं दिख रही है सामने इसमें, लेकिन वो वीडियो ऑफ है इनका। एक मैं देख रहा हूँ डॉक्टर स्वाति पांडे, वो भी जर्नलिज्म पढ़ा रही हैं, और सुजाता जी हैदराबाद से। चैट बॉक्स तो उन्होंने भी लिखा है, तो यदि आप भी कुछ चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो स्थितियां हैं उनके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। डॉक्टर ममता भाटिया इग्नू जयपुर सेंटर की रीजनल डायरेक्टर हैं और हमारी स्टूडेंट भी रही हैं। ममता जी, कुछ कहना चाहें तो आप भी आमंत्रित हैं, क्योंकि सुजाता जी और डॉक्टर ममता भाटिया ने तो ऑफर भी किया है कम्युनिकेशन टुडे के साथ एक वेबिनार निकट भविष्य में आयोजित करने के लिए। हाँ डॉक्टर ममता। I've got a bad throat, तो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। और बहुत ही अच्छे से रेलेवेंट बात जो है अर्चना जी ने और भावना जी ने दोनों ने ही बताया है। एंड नॉट ओनली जर्नलिज्म बट आई थिंक एवरी फील्ड women have to face challenges, बट उन challenges को हमें अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना ही है और कर भी लेते हैं। और जो वर्क लाइफ फैमिली लाइफ बैलेंस की बात अर्चना जी ने कही, तो हमें तो लगता है कि बी व्हाट यू आर, चाहे वो आपका वर्क फ्रंट है, चाहे वो आपका फैमिली फ्रंट है, और कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस हम लोग कर भी पाते हैं। क्योंकि जब कलाम साहब की बात करें तो उन्होंने बोला कि अगर मल्टीटास्किंग सीखना है तो एक गृहिणी से सीखिए कि किस तरह से वो मल्टीटास्किंग करती है, और उस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि women are doing it in every field. I'm sorry sir, I won't be able to speak much today. Thank you. Whatever you said, ma'am, it was perfectly right. And प्रियंका जी, आपको एक और नाम मिला है, कृष्णा जी, but she is not keeping well. Still she spoke and shared her views. That's wonderful. अर्चना भारती हैं, उन्होंने इसमें लिखा भी है, जिस सशक्ति, ये बहुत मतलब तार्किक है और इस बात पर सच में ओपन मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए। जिस सशक्तिकरण की शिक्षा हमें शैक्षणिक संस्थानों में मिलती है, वहीं पर महिलाओं की समस्याओं को नहीं सुना जाता। दिस इज सो एट टाइम्स इट इज रियली आयरॉनिकल। मतलब क्यों है ये सब कुछ? आप इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो बिल्कुल आमंत्रित हैं। प्रियंका जी, भावना जी। उषा जी, आप सुन पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बार फिर से, बीच में एक्चुअली थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम था तो मैं आपका पूरा सवाल नहीं सुन पाई। आप एक बार दिस इज यूजुअल वाला सवाल है, ये हमेशा हर जगह पर बोला जाता है, बट इन्होंने स्पेसिफिकली शी हैज टॉक्ड अबाउट द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। शी सेड जहां पर हम सिखा रहे हैं, जहां जिस
सशक्तिकरण की हम शिक्षा देते हैं शैक्षणिक संस्थानों में, बेसिकली ऑल शिक्षा इज बीइंग गिवन इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ओनली, वही हमारा स्टार्टिंग फेज होता है। तो अर्चना जी का कहना है कि क्यों ऐसा होता है कि उन्हीं संस्थानों में ही बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं की ये बात को नहीं सुना जाता, एंड द प्रॉब्लम्स आर नॉट टू बी अंडरस्टूड। देखिए अर्चना जी, जो आपका सवाल है वो मतलब ऐसा सवाल है कि आई थिंक बहुत ही ऑब्वियस है, और इसका सबसे सटीक या सही जवाब ये है कि हम लोग अपने घरों में शक्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, शक्ति की पूजा करते हैं, यानी कि माँ की पूजा करते हैं, जो कि खुद महिला है। और लेकिन एक्चुअल में कितने घरों में महिलाओं को वाकई ही शक्ति का रूप माना जाता है या समझा जाता है? तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हर जगह पर है। तो जाहिर है कि वो डिस्क्रिमिनेशन जो आप प्रोफेशनल बात कर रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर भी होता ही है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वही जो कि जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे हमारा डिस्कशन हो रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत से, अपनी जो अपने आप को प्रूव करके, बार बार प्रूव करके, फिर हमें ये अपने आप को बताना पड़ता है दुनिया के सामने, समाज के सामने, ये साबित करना होता है कि हमें जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका मिल रहा है, हम लोग उसके लिए वी आर क्वालिफाइड, वी आर गुड एनफ फॉर दैट। सो इसीलिए हमें, जैसे चूंकि इतनी देर से हमारा डिस्कशन इसी बात पर हो रहा है कि हमारे लिए चीजें थोड़ी मुश्किल ज्यादा होती है महिलाओं के लिए, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग अपना जो भी कुछ अचीव करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। इसमें मैं, चूंकि यहाँ पे जो हमारी बातचीत है थोड़ी सी गंभीर नोट पे चल रही है, मैं इसमें एक लाइटर चीज ऐड करना चाहूंगी। महिला पत्रकारों से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा मेरे पास है। मेरे ऑफिस, मेरी कलीग होती थी, जूनियर थी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम, अरेंज मैरिज की बात हो रही थी और उनको लड़का मतलब देखा जा रहा था उनकी शादी के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया भाई, हर दूसरा लड़का जो है तुम मतलब नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है, शादी की बात नहीं होती, क्या है? तो कह रही मैम, महिला पत्रकार से शादी कौन करना चाहता है, सबको डर है कि पता नहीं कल इनकी, ये इतनी एम्पावर्ड है अपने आप में, तो पता नहीं क्या होगा हमारा। तो मुझे लगा कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। हम क्यों नहीं ये वाला एस्पेक्ट देखते हैं कि जब एक बार आते हैं आप इस फील्ड में, सारे चैलेंजेस सब कुछ है, लेकिन आप कम से कम इस लायक जरूर होते हैं कि आप अपने लिए आवाज उठा सकते हैं, आप सोसाइटी के लिए आवाज उठा सकते हैं, जो दूसरे लोग हैं जिनको की जरूरत है, आप उन सबके लिए आवाज उठा सकते हैं। सॉरी। तो ये एक तरह से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि हमें, आप जो कि बार बार बात हो रही है पॉजिटिव साइड की, ब्राइटर साइड की, तो हमें ये पॉजिटिविटी और ये ब्राइटर साइड देखना है, और आप तमाम चैलेंजेस को कनकर करते हुए हमें फिर वापस एक विनर बनकर आना है। एब्सोल्युटली। और प्रियंका जी, ये खुद बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ रही हैं, और जूझते हुए ये हमारे हर वेबिनार में प्रेजेंट रहती हैं, पहली बात। और इस वजह से मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर अर्चना भारती अगर अभी इस वक्त हमें सुन पा रही हैं तो वो हमसे बात कर सकती हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हाँ, शी एक्चुअली वांटेड टू शेयर, और हम टाइम हमारा कंस्ट्रेंट हो जाता था तो हम नहीं बुला पाते थे। तो अर्चना जी, इफ यू आर लिसनिंग एट दिस मोमेंट, सो यू आर मोस्ट वेलकम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली मैम, मैं अभी लौट रही हूँ, मैं अपने संस्थान से लौट रही हूँ, विश्वविद्यालय से, और अभी मैं बस में बैठी हूँ, तो मुझे आवाज भी ठीक से सुनाई, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सर, मैं आपकी बात को मैं कुछ मैं सुन पा रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ मैम। मैं अभी बस में हूँ, बस में बैठी हुई हूँ मैम। कोई बात नहीं, लेकिन देखिए आप खुद, अभी एक चैलेंज तो आपके सामने खुद है, उसके बावजूद भी आप कंसंट्रेट कर रहे हो और सुन रहे हो, दैट इज वेरी गुड। और ये हाँ, दैट्स रियली एडमिरेबल। और ये अच्छी बात है कि जितने भी चैट बॉक्स में बातें लिखी जा रही हैं उसके बावजूद वी आर राइटिंग दैट, बट वी आर पैरेलली वर्किंग so that we can get that strong, hold upon things and perform. जो भी हम करना चाहते हैं वो उस लेवल पर हम कर पाते हैं जो हमारी इच्छा है। जैसा कि भावना जी ने बोला कि प्रॉब्लम्स भी होंगे, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम मानना ही नहीं है, उनके सोल्यूशन को पैरेलल रख करके हमें आगे बढ़ना है। प्रोफेसर भानवत, आदेश करिए नेक्स्ट। मेरे ख्याल सुजाता जी से मेरी बात हुई है, जो हैदराबाद में है। सर्वेश जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सर। सुजाता जी से बात कर ले एक बार, उसके बाद सर्वेश जी को आमंत्रित करते हैं। राइट सर। सुजाता जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और माइक अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो। हाँ जी। हाँ, सर्वेश जी बोल रहे हैं। ये आवाज बड़ी कम आ रही है। नहीं सर्वेश जी, हम सुन पा रहे हैं, आप ईयरफोन लगाइए। सर्वेश जी आप तो फुल है, देखो ना। सर्वेश जी ईयरफोन लगाइए, ईयरफोन से आपको हेल्प मिलेगा। मेरी कहाँ है? आप कोई जरूरी नहीं है, बिना ईयरफोन भी हो सकता है कोई ऐसा। नहीं, बट बिकॉज़ शी इज नॉट एबल टू लिसन सर। ये रिकॉर्डिंग के लिए माइक ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑफ है।
सर्वेश जी आप सुन पा रहे हैं? फिर वो बंद हो गया। अब उन्होंने ऑफ कर दिया। चलिए सुजाता जी आप कुछ कहना चाहें जब तक सर्वेश जी तकनीकी व्यवधान से निपटती हैं तब तक। हाँ सुजाता जी बोलिए। जी नमस्कार सर, नमस्कार प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, थैंक यू हाँ मैडम, ठीक है। so thank you very much. This is Sujata calling from Hyderabad. I'm very happy to announce you that I'm connected with mass communication journalism. I teach in mass communication journalism. I'm also from print media as well as radio and Doordarshan. मैंने मतलब कहीं when I was working in the print media as a reporter, so when I was a reporter, there is a lot of problems I used to face. You know, in the sense, you know, I used to come at around 12 o'clock. तो मतलब भैया मम्मी को बोलते थे कि मतलब why you want to allow into journalism and all, why you want to take up the reporting section and all, you have taken up with some, you know, administration or maybe some teaching profession. तो वही भैया मेरे है ना, वो स्टेशन पे आके मुझे पिकअप करके घर ले जाते थे. So many problems we had to face when I got married. Then even I was working in the news time. I was a reporter there. I was working in Hindi Milap in Hyderabad, Hindi Milap. Then, you know, I used to go for the coverage for the secretariat and again, you know, assembly, and I used to do good stories. Then once I have been to Hyderabad, हैदराबाद महबूब की मेहंदी एक ऐसा जगह है जहाँ पर you know you face you know जो the dances they do that very occupational dances and all. It was very challenging job for me. तो मुझे लगा कि I may not get the story, but you know they could very in the sense very cooperative. इस महबूब की मेहंदी ऐसी जगह है जो you know they find it dances, you know, they courtesan dances they used to be there, and the condition very bad and all that time. Then I have to do one great story, and because it was as I told you, because I was working a reporter in Hindi Milap, then that was when it's published in the Hindi Milap in Hyderabad. I got lot of, you know, appreciation, began, you know, a lot of encouragement, because that was a story published in the Hindi Milap, means it was great at that time, because in Hindi Milap such a newspaper where they have to it's like more related to the religious, again more, you know, related to that spiritual paper and all, and they go mostly for the Hindu related stories and all, because the publishing this particular story on Mehboob Ki Mehendi is it's a great challenge for me. And again interviewed when Governor Krishnakant was there, I interviewed him. A lot of encouragement was there, because कृष्णकांत जी वो अपने मतलब एक सदस्य के रूप में हमें मानते थे. Whenever I used to go there, whenever I used to meet him, तो बहुत अच्छा रहा. And इसके साथ साथ मतलब इसके कहीं ना प्रॉब्लम्स भी फेस की मैंने. And because when I got married, you know, शादी के बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि मतलब परिवार को भी समय देना पड़ेगा. तब मेरे हस्बैंड ट्रांसफर हो चुके हैं मणिपुर, मतलब बनारस के पास एक मणिपुर है ना, नहीं मैनपुर, तो वहाँ पर इनका ट्रांसफर हुआ था. तो मैं अकेले यहाँ पर, मेरी बेटी 2 साल की थी, तब बहुत परेशान झेली मैं. एंड हेल्थ वाइज थोड़ा सा मतलब काफ़ी परेशान हुई थी मेरी. lot of problems were there. I'd say when I think about that, then definitely yes, it was a challenge to be a reporter and to be in a journalism profession. And later after, because जब मेरा हस्बैंड ट्रांसफर हो गया इधर यूपी की तरफ, मेरे ख्याल से 14 साल में यूपी में रही, लखनऊ में रही, झांसी, कानपुर, उरई. तो इसी वजह से या आई कुड गेन समथिंग. एंड अगेन आई यूज्ड टू राइट इन दैनिक जागरण. जब झांसी में थी तब मैं दैनिक जागरण को लिखती थी मैं. इसके बाद लखनऊ में रही, लखनऊ में 5 साल तक रही मैं. तो वहाँ पर मैं पढ़ाती थी अमेठी यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में. यस फ्रॉम रिपोर्टिंग से मैंने एकेडमिक चूज कर लिया, क्योंकि यस आफ्टर मेरे ख्याल से मैडम जी मुझे लगता है प्रोफेसर साहब मुझे लगता है कि फॉर वुमेन आई थिंक टीचिंग प्रोफेशन इज द बेस्ट प्रोफेशन. आई फील दैट यू नो, क्योंकि जो रिपोर्टर के जरिए काम करना इस चैलेंज जो प्रियंका मैडम बता रही थी, है ना, इट वाज अ चैलेंज फॉर एवरीबडी. And it's not so easy to get in to continue the profession, especially in the reporting as well as in different, you know, in working in a newspaper or in media house. So yes, it was a very great experience. Still क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ बच्चों को मैं बताती रहती हूँ, और मैं अभी मैं रह हूँ यहाँ इस कॉलेज के लिए, और यह बताती रहती हूँ कि इस तरह की कई परेशानी होंगी और कभी आपको झेलना पड़ेगा.
एंड इसलिए आपको मतलब सॉफ्ट स्किल के साथ साथ मतलब भाषा पर जरूर मतलब दबाव देना चाहिए, एंड यू हैव टू राइट वेरी वेल, यू हैव टू वेरी स्पोर्टिव इनफ, एंड मतलब ऐसा है कि सबसे मिले मतलब मिलनसार होना चाहिए, एंड यू शुड गेट द स्टोरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. When you get the story means that end the story, that should be published and all. So we need lot of effort should be done by the, as a communicator, as a teacher. When I'm teaching right now in degree college right now, I'm the assistant professor here. So yeah, many challenges are there, many things like that. And we have a studio, is a very good studio we have. In the studio also they want, see, आजकल क्या बच्चे समझते हैं कि मतलब ऐसा कि कैमरा पकड़ के फिर दूसरों से पूछ के व्हाट यू से, मतलब इस विषय में क्या बोलेंगे, यही समझते हैं. दैट्स नॉट in the sense it is not a teaching journalism profession. Journalism means many things are there, many areas are there, many where you can really excel. Besides teaching, besides reporting, there are so many things to be done in journalism profession. And being the journalism, definitely it gives, I could मुझे एक बात बताना चाहिए, क्योंकि उसके साथ जर्नलिज्म के साथ. Sujata ji, we need to take a break now because our the speaker is there with us and she needs to go for some other assignment. One second ma'am. तो जर्नलिज्म में आपको नाम दाम काम तीनों मिलेंगे आपको. Thank you very much, madam. Great. Last line was wonderful. Yes, everything is there, but the only thing is that you have to be very optimistic and you have to keep struggling and accept all the challenges to be converted into opportunities. Very good. Thank you so much, Sujata ji. Thank you. With this, I would like to call upon Sarvesh ji. और आपका परिचय मैं जरूर बताना चाहूंगी. सुश्री सर्वेश जी फोटो पत्रकार के रूप में पिछले कई वर्षों से अनेक मीडिया संगठनों के साथ कार्य कर रही हैं. आपने हिंदुस्तान टाइम्स समूह में स्टाफ फोटोग्राफर के रूप में लंबे समय तक काम किया है. इसके अतिरिक्त आपके फोटोज दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित प्रकाशनों में प्रकाशित हो चुके हैं. सर्वेश जी पिछले 30 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता से जुड़ी हुई हैं. फोटो पत्रकार के रूप में आपने कारगिल वॉर I got confused because मैं पहले आपका पढ़ चुकी थी, दोबारा पढ़ने में मुझे कंफ्यूजन हो गया. फोटो पत्रकार के रूप में आपने कारगिल वॉर व उत्तरकाशी और बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़े सूखे तथा अनेक महत्वपूर्ण त्योहारों को कवर किया है. मुख्य रूप से आपका कार्य क्षेत्र है जेंडर रिलेटेड मुद्दों पर काम करना. महिला सशक्तिकरण की दिशा में सर्वेश जी लंबे समय से कार्य कर रही हैं. वर्तमान में आप एक स्वतंत्र प्रेस फोटोग्राफर के रूप में अनेक प्रकाशनों से जुड़ी हुई हैं. इस समय मुख्यतः ट्रैवल फोटोग्राफी आपका शौक है. आपने इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया सहित अनेक देशों की यात्राएं की हैं. अनेक पर्वतारोही अभियानों से आप जुड़ी रही हैं और ट्रैकर के रूप में आपने विशेष ख्याति अर्जित की है. कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने का भी सौभाग्य आपको मिला है. पत्र सूचना कार्यालय से आप स्वतंत्र पत्रकार के रूप में अधिस्वीकृत हैं. आपका परिचय पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े थे, तो मैं चाहती थी कि वे भी जाने कि आपकी शख्सियत क्या है. इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वेश जी को. मैम माइक अनम्यूट कर लीजिए. माइक ऑफ, आपका माइक ऑफ हो रखा है, आप माइक ऑन करिए. मैम आपके स्क्रीन पर एक रेड राउंड सर्कल में होगा, उसपे माइक का सिंबल है, उस पर प्रेस करिए तो आपका माइक ऑन हो जाएगा. मुझे लगता है वो लेफ्ट हो गई है. हाँ, आई थिंक वो ऑन करने के चक्कर में बजाय माइक के वो जो लीव मीटिंग है उसको प्रेस कर दिया. Let's wait for a second. तकनीक के अपने चैलेंजेस हैं. Some positive things, some troubles. We have to deal with them. 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं. हाँ. और पार्टिसिपेंट्स में कोई बोलना चाहे तो आमंत्रित कर लीजिए. मुझे सुरेश जी दिख रहे हैं. सुरेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं और कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल अपने विचार साझा कर सकते हैं. बट यूजुअली सुरेश जी कुछ ड्राइव कर रहे होते हैं जब हमसे कनेक्टेड होते हैं.
डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल इज देयर, अगर आप सुन पा रहे हैं और कुछ कहना चाहें तो डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल। Sir, I think technical problem is. Yes, ma'am, please. Actually, I am on my way from college to home. I can understand. Okay. Understand. Yeah, I'm listening to all of you. That's good. But so when I reach home, then I can talk if it is continued on. True, ma'am. Perfect. Okay. We'll see. Okay. We'll be till then we'll be online. We'll definitely welcome you. Right, Yeah. ma'am. Take care. Have a safe drive. Thank you. Panavat sir, I don't see that. हाँ, तो मेरे ख्याल अब इसको अपन, वो है प्रिंसिपल साहब हैं आपके या नहीं ज्वाइन कर पाए? नहीं, ज्वाइन किया हुआ था, वो थे साथ में ही थे, मैं एक बार कॉल कर ले रही हूँ। सुरेश गौड़ जी, आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? सुरेश गौड़ जी दिल्ली में ही हैं और जनसंपर्क के क्षेत्र में इस समय काफी काम कर रहे हैं। सुरेश जी, यदि सुन पा रहे हो तो 2 मिनट आप भी अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। स्वाति पांडे, आप भी शायद जर्नलिज्म पढ़ा रही हैं, यदि सुन रही हैं तो। चलिए, आज हमारे कुछ तकनीकी समस्याएं रही, 2 विशेषज्ञ हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, उनके अनुभव और विचारों से वंचित रहे, सर्वेश जी और मनीषा जी। मनीषा जी ने ये आश्वासन दिया है कि वो अपने विचार रिकॉर्ड करके भेज रही हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाए विचार, तो उसको यहाँ सुनवा पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी कुल मिला के चर्चा, चाहे 2 ही विशेषज्ञ थे, लेकिन जो अपने अनुभव उन्होंने शेयर किए। हाँ, स्वाति जी ने शायद माइक ऑन किया। स्वाति जी, आप बोलना चाहती हैं कुछ? जी सर, नमस्ते सर, आपको नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल, गुड आफ्टरनून सर। मैं डॉक्टर स्वाति पांडे, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया है। सर, मैं अपने विषय में बताना चाह रही हूँ कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उनको बहुत से चैलेंजेस के साथ साथ उनको पॉजिटिव इफेक्ट्स भी ज्यादा रहते हैं, एस्पेक्ट्स रहे हैं हम लोगों के साथ। मैंने जब ट्रेनिंग की थी स्वतंत्र भारत में, तो मुझे जब पहला श्रीवास्तव सर थे, उन्होंने जब मुझे पहला असाइनमेंट दिया कि एक आत्महत्या पे दिया, तो उस पर जब हम लोगों ने लिखा और उसी से रिलेटेड मेरे दिमाग में और भी विचार आए, तो उन लोगों ने कहा कि आप अपने हॉस्टल पे लिखिए, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे। तो उन्होंने जब हॉस्टल में लिखा मैंने, तो हॉस्टल पर की जो प्रॉब्लम्स थी, जो गर्ल्स की प्रॉब्लम्स थी, जो और रिसर्चर्स की प्रॉब्लम्स थी, उन सब पर मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा। तो उसमें नाम चूंकि अपना नहीं डाल सकते थे, क्योंकि हॉस्टल में प्रॉब्लम्स थी वार्डन की, और हम लोग एज अ जर्नलिस्ट थे, तो वो प्रॉब्लम, तो उसको मैंने एक फेक नेम डाल करके, एक उपनाम दे करके उस पर लिखा। तो लेकिन टीचर्स को पता चल गया और उन्होंने उस पर काफी रिएक्शन, लेकिन वो जो रिएक्शंस थे वो हमारे पॉजिटिव थे, जो कि कहा जा सकता है कि जो महिला पत्रकारों के साथ नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। परंतु हम लोगों ने देखा कि ट्रेनिंग पीरियड में भी, हम लोगों के हॉस्टल में भी वार्डन्स या और जो साथी हम लोगों के काम करने वाले जर्नलिस्ट थे या सब एडिटर्स थे, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत सपोर्ट किया। आज से 20 साल पहले की बात है ये, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए और पूर्व के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए, तो हम लोगों को नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव इफेक्ट्स और चैलेंजेस बहुत सारे हैं जिन पे हम लोगों ने काम किया, लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया। तो ये नहीं कहा जा सकता कि महिला पत्रकारों के सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही हैं, वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का एक तुलनात्मक रूप में कार्य करते हैं, उनके संग दोनों चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया स्वाति जी, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल सही कह रहे हो और हमारे स्पीकर्स भी इसी बात पर पूरा फोकस कर चुके हैं। आपने अपनी बात यहाँ रखी, रियली थैंकफुल टू यू एंड वी आर हैप्पी हियर टू सी मनीषा जी, शी हैज जॉइंड विद अस। ओके, थैंक यू सो मच टू भानावत सर एंड दिव्या मैम। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मनीषा जी को, अच्छा ठीक है, आप बात कीजिए। नहीं तो मुझे एक बात इसमें शेयर करनी थी। We'll do that, Priyanka ji, we'll do that. By the end of the session, we will make that interactive session. We'll do that. Right. Thank you so much.
मनीषा जी आप या आई कैन सी यू, आप माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हमारे बीच मनीषा जी आ चुकी हैं। सुश्री मनीषा जी देश की उन प्रमुख महिला पत्रकारों में हैं जो महिला मुद्दों और अन्य विविध विषयों पर लगातार लंबे समय से लिखती चली आ रही हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सहारा दैनिक समाचार पत्र में एसोसिएट एडिटर के रूप में कार्य कर रही हैं। उनकी अब तक 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें प्रमुख हैं हम सभ्य औरतें, हमारी औरतें तथा और औरत अंग। अनेक संपादित पुस्तकों में आपके आलेख भी संकलित किए गए हैं। हिंदी अकादमी से आप महिला लेखन और अपने टेलीविजन शोज के लिए पुरस्कृत हो चुकी हैं। लंबे समय तक आपने सहारा समय पर चर्चित टीवी शो मेरी आवाज को संचालित किया है। विभिन्न टीवी चैनलों पर आप स्त्री विमर्श से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ के तौर पर आमंत्रित की जाती रही हैं। भारत सरकार के अनेक पुरस्कारों की ज्यूरी में भी आप सदस्य रही हैं और पिछले कई वर्षों से दिल्ली अकादमी की ज्यूरी की सदस्य भी हैं। आपका कॉलम खरी खरी राष्ट्रीय सहारा में वर्ष 1996 से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी देश की अनेक प्रमुख पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से लिखती रही हैं। सादर आमंत्रित हैं आप। मनीषा जी माइक अनम्यूट कर लीजिए और आप अपने विचार साझा कर सकती हैं। मनीषा जी। मनीषा जी अभी तक मैं आपको देख पा रही थी, आपने गलती से शायद कोई और बटन प्रेस किया तो वीडियो भी बंद हो गया आपका और माइक तो ऑफ है ही। आज टेक्निकल इश्यूज जरूरत से ज्यादा हो गए। मोर चैलेंज, विल हैव टू टेक अनदर टॉपिक, challenges of technical facilities. मनीषा जी वापस आइए, वीडियो ऑन करिए, आवाज ऑन करिए। She's there but she's not able to connect with us probably. I think या तो उनके घर पर कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। कॉल करूं क्या उनको? यदि मोबाइल एक बार ट्राई कर लीजिए। हाँ ट्राई, मुझे भी वही लग रहा है। मोबाइल से फोन करा था ना तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इतनी मुश्किल से जुड़ी है वो। जुड़ के भी नहीं जुड़ पाई है हमसे। हाँ प्रियंका जी हम तब तक आपकी बात सुनते हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है वरना प्लीज आप शेयर करिए जो आप बोलना चाह रहे हो। नहीं, एक्चुअली मैं उसी बात में जो हमारे अभी मुझसे पहले बात हो रही थी एक्सपर्ट की, वो बता रही थी कि किस तरीके से महिलाओं की जो अचीवमेंट है जर्नलिज्म में वो भी काफी हैं। तो उसी के रेफरेंस में मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी कि जो चीजें ऑब्वियसली जो सबके सामने दिख रहा है वो तो है ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि अगर आप में एक्चुअल टैलेंट है या आपने एक्चुअल में काम किया है तो वो बहुत ऑब्वियस नहीं होते हुए भी आपका वो टैलेंट दिखता है। जैसे कि जब मैं बहुत बहुत यंग थी, मतलब आई वाज स्टडिंग इन IMC 20 साल पहले, 2001 की बात है। तो उस टाइम पर मैंने नवभारत टाइम्स में एक राइटअप लिखकर भेजा था एडिट पेज के लिए। तो नवभारत टाइम्स का एडिट पेज जो है वो बहुत ही मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अपने फील्ड के एकदम जो जानकार लोग हैं और जो बहुत ही मतलब उच्च कैटेगरी के जो पत्रकार जिनको आप बोलोगे एक्सपीरियंस्ड, उन लोगों की खबरें वहां पे छपती थी, उनके विचार छपते थे। तो मैंने एक लेख भेजा और मेरा वो लेख छप गया। तो मैं तो ऑब्वियसली लाइक ऑन क्लाउड 9 की, अरे वाह नवभारत टाइम्स में आपने लिख लिया तो क्या बात है, क्योंकि वो पोस्ट से भेजा था। उसके बाद जब मैं बाद में छपने के बाद धन्यवाद देने के लिए फिजिकली वहां पे कुछ दिन के बाद 6 महीने या कुछ ऐसा हुआ होगा, और मुझे ये भी था कि चले जाके अब मिला जाए लोगों से वहां पर। और मैं वहां पे गई तो वहां पे जो एडिट पेज देखते थे उनके इंचार्ज, उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा, ऐसे मुझे देखा और उन्होंने बोला कि हाँ बोलो। तो क्योंकि मैं बहुत यंग थी उस टाइम पर, तो उनको लगा कि ये कौन बच्चे टाइप के लोग चले आए। तो मैंने बोला सर मेरा ना राइटअप छपा है आपके यहाँ पर एडिट पेज पर। तो उनको यकीन नहीं, उनका बोला राइटअप बताओ कौन सा था। नाम बताया उनको कि सती बनाने में शामिल समाज ये राइटर था, छपा था। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा तारीफ की कि क्या बात है तुमने लिखा था, ऐसा तो नहीं है किसी और से लिखवा लिया है तो मैंने उनको बोला नहीं सर मैंने लिखा था। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बहुत लाइटर मूड में बोली। उन्होंने कहा सुनो
अभी तुम ऐसे हो ना, तो जो हमारे एडिटर साहब हैं उनके सामने मत जाना, क्योंकि उनके सामने जाओगी और ऐसे बाल लेके जाओगी तो वो कभी नहीं मानेंगे कि तुम लिख सकती हो। उनका मानना है कि एडिट पेज पे जिसके बाल सफेद हो, धीर गंभीर आदमी, वही लिखना चाहिए। तो ये मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए पुटअप किया है कि अगर आप काम करते हैं तो ऐसा नहीं है, आपका काम अगर अच्छा है तो वो वाकई हर जगह उसका जो रिकॉग्निशन होता है। That's true. Yeah, this is also one of the hurdle. Like people have this idea that only, you know, by look, if people are matured kind, then only they can do something effective and huge one. Absolutely true. So we are talking in practical terms, अच्छा so lively. जी सर। निशा जी, हमारे साथ ईरा झा जी जुड़ गई हैं। हाँ, ईरा मैं झा अभी जी देख पा रही थी, अब अचानक नहीं सीनियर देख पा रही हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम जैसे समूहों के साथ आपने काम किया है। और मेरी रिसर्च स्कॉलर है डॉक्टर अरुण चौहान, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि आप ज्वाइन करें, तो वो बिना किसी औपचारिकता के हमारे साथ हैं, तो उनका स्वागत करते हैं। और उनसे उन्हीं की कहानी, उनका जो सारा संघर्ष रहा है, मेरे ख्याल प्रियंका जी चूँकि टाइम्स ग्रुप के साथ रही हैं तो उनका तो संवाद रहा होगा निश्चित रूप से उनके साथ। तो ईरा जी यदि अपनी आवाज़, हमारी आवाज़ सुन पा रही हैं तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप सर ईरा जी ने ज्वाइन किया और ज्वाइन अभी मुझे लग रहा है वापस। हाँ, ईरा जी प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिए मैम। अब हो गया? जी बिल्कुल मैम। ठीक। आप बताएं। आप बताएं मैम, आपको सुनने के लिए बैठे हुए हैं और खुशी है कि आपने बिना किसी औपचारिकता के हमारे साथ जुड़ने के लिए आप आ गई। हम बहुत खुश हैं और हम सुनना चाहते हैं आपको। ऐसा है कि जिस जमाने में पत्रकारिता शुरू की थी, हिंदी पत्रकारिता में लड़कियां लगभग नहीं थी, और थी भी तो न्यूज में तो नहीं, बिल्कुल नहीं थी। 2 या 3 थी, मैं थी, एक किरण थी और एक आशा जी थी। आशा जी वगैरह जो थी वो सब टीचर में काम करती थी। और उस समय लड़कियों को कोई भी ड्यूटी देना जो है बहुत मतलब चुनौतीपूर्ण माना जाता था, और लड़कियों करना भी नहीं जाती। दोनों तरह की बात थी। सबसे पहले न्यूज में मैंने काम करना शुरू किया, अखबार बनाना शुरू किया। उस समय बड़े 2 यशस्वी संपादक हुआ करते थे, एक तो राजेंद्र माथुर और दूसरा सुरेंद्र प्रताप सिंह, दोनों का बड़ा नाम था। तो इन लोगों से मैंने काफी लड़ाई की, उसके बाद फिर मौका ले लिया, उसके बाद अखबार निकालने लगी। तो मेरे ख्याल से हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में अखबार निकालने वाली मैं पहली औरत हूँ। मुझसे पहले कभी किसी ने नहीं निकाला अखबार, तो ये था। और उस समय ये था कि अखबार निकालना वगैरह इसलिए भी चुनौती का काम था कि वो वहाँ का माहौल औरतों के जाने लायक नहीं होता था। लोग गालियां दे के बातें करते थे, और मतलब जिन चीजों में बड़ा स्कैंडलाइज हो जाता मामला, उस समय बहुत सामान्य बातें थी और चलता रहता था ये सब। हम लोग ऑब्जेक्शन भी करते थे, लेकिन कितना कर लेंगे, सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता रहता था। उसके बाद मुझे बड़े बड़े टास्क मिले। नवभारत टाइम्स में मैंने काम किया। नवभारत टाइम्स में बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, बहुत तेजी से बढ़ती हुई थी। तो ये बात बहुत लोग गले नहीं उतरी, और इन लोगों ने षड्यंत्र करके बहुत सारी बातें करके मुझे निकलवा दिया नौकरी से। वहां से मैं निकाल दी गई। और मेरे ख्याल से ये भी इतिहास में पहली बार हुआ होगा उस समय कि पत्रकारिता में कोई पत्रकार और कोई तरह से निकाला गया हो। उसके बाद मुझे हिंदुस्तान टाइम्स में जॉब मिल गया। हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने झंडे गाड़े, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन वहां पर भी वही बात, एक तो ज्यादा लोकप्रिय होना, ज्यादा अच्छा काम करना, ये सारी चीजें ना औरतों के लिए इतना बड़ा नासूर बन जाती हैं कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सारी चीजें हैं। और देखिए, वही काम अगर कोई आदमी करे तो कुछ नहीं, उसके लिए 7 खून माफ है। अगर औरत करे तो औरत के लिए, जैसे कि अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप बोलेंगे मैं छुट्टी लेना चाहती हूँ, और तो अरे इनका तो हमेशा का ये बहाना, ये हमेशा ही ऐसे छुट्टी लेना चाहती है। औरत करे नहीं, आदमी करे तो अरे बेचारे का बच्चा बीमार है, क्या करता वो, कौन करेगा, उसकी बीवी थोड़ी ना जाएगी। मतलब ये दुभात है, दोहरा व्यवहार है, एक तरह का दोहरा मानदंड है। और उसमें महिलाएं ऐसे कैसे काम करती थी मुझे समझ में। हमने तो बहुत मेहनत है, बहुत काम भी किया, बहुत धोखे भी खाए। और लेकिन मुझे लगता है अब हमने क्योंकि बहुत संघर्ष किया, इसलिए पत्रकारिता में महिलाओं के लिए राह कुछ आसान हुई है, वरना पहले तो बिल्कुल भी ऐसा माहौल नहीं था। और मतलब क्या है, संपादक 1-2 ही अच्छे थे, उदार थे, बाकी संपादक भी बड़े हेय दृष्टि से देखते थे औरतों को। ऐसा लगता था कि औरत है इसलिए कुछ जानती ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं था। और हमने ना उस समय पत्रकारिता की डिग्री ली ना कुछ, ये खाली लिखना शुरू कर दिया। तो सारी चीजों में अब और क्या जानना चाहती बताइए ना आप तक, फिर मैं बताऊं।
आपने जिस बेबाकी से सारी बातें रखी हैं वो अपने आप में ही बहुत काबिले तारीफ है और दिखाता है कि आपने पूरा स्ट्रगल किस तरह से किया है। और ये भी फैक्ट है कि ठीक है, जिन चीज़ों को आप देख करके चले और आज जिस मुकाम पर आप पहुंचे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ठीक है अब वो स्थिति नहीं है, पहले बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। आपने जो सेंटेंस बोला है इट इज पेनफुल, लाइक रोंगटे खड़े हो गए बात सुन करके कि पत्रकारिता जो कि बहुत मतलब मुझे लगता है बुद्धिजीवी का काम है वो, और उस अगर फील्ड में भी ये स्थिति है तो दिस इज रियली पेनफुल। और उस माहौल से सरवाइव करके आप इस लेवल पर पहुंचे और भाषा आपकी इतनी स्ट्रांग है। आपने कहा झंडे गाड़े, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे होंगे उन्हें भी ये सब अच्छा लगेगा और दे विल गेट मोर मोटिवेटेड कि यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ थिंग्स। आप आगे बढ़ें और आगे चलें। प्रोफेसर भानावत, मैं आपसे जरूर चाहूंगी आप अपना कुछ जरूर साझा करें। जी बोल रहे हैं। एरा जी ने राजेंद्र माथुर जी का नाम लेकर पूरा इतिहास याद दिला दिया। मुझे ध्यान है 1984 में हमने हमारे डिपार्टमेंट बुलाया था इनको, और हम तो विद्यार्थियों से कहते थे कि राजेंद्र माथुर जी के साथ हमने मंच शेयर किया। मेरे एक मित्र हैं, आप शायद जानते होंगे, राजेश बादल, जो राज्यसभा टीवी में रहे। हमारे बैच का ही है वो, हमारे अच्छा, हाँ, वो जयपुर भी गए, नवार टाइम्स पर रहे थे। तो उस समय हमारे मेरे यहाँ, हाँ, आप भी रहे यहाँ? हाँ, मैं राजेश मित्तल, अनंत मित्तल मेरे पति हैं। कौन? अनंत मित्तल। अच्छा, अनंत मित्तल जो बाद में नेमिशरण जी मित्तल आपके वो हो गए फादर इन लॉ फिर तो। हाँ। नेमिशरण जी मित्तल तो मैं तो अनंत जी के साथ रहा हूँ ना, जनसत्ता में चले गए थे बाद में वो। हाँ, जी वही। ये सब तो हमारे डिपार्टमेंट में आते रहे, अनिल लोढ़ा, श्याम माथुर, ये सब लोग नवभारत टाइम्स की बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी। राजीव नैन बहुगुणा, हाँ, राजीव नैन बहुगुणा पूरी की पूरी एक टीम थी उस समय। ईश मधु तलवार, महेश शर्मा, महेश झालानी, पता नहीं कितने नाम याद दिला दिया आपने। महेश जोशी, महेश झालानी, महेश जोशी भी थे ना हमारे। तो राजेश बादल ने तो पूरी फिल्म बनाई है राजेंद्र माथुर जी के ऊपर, और कई जगह उन्होंने उसका प्रदर्शन भी किया है। वो इसीलिए नाम तो मुझे स्ट्राइक कर रहा था कि कहीं सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा गैप आ गया। उस जमाने में जो लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उनमें मैं थी, मणिमाला थी, हम 2 लड़कियां थी वहाँ। हाँ, मणिमाला का भी ध्यान है मुझे, उनको तो शायद अवार्ड वगैरह भी मिले थे उस समय। और काफी तरह से जर्नलिज्म को उस दौर की जो आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की बहुत कम संख्या होने के बावजूद उन्होंने अपनी एक अच्छी पहचान उस दौर में बनाई थी, तो 80 के दौर में। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की इस वेबिनार की उपलब्धि है कि बहुत सीनियर और जुझारू पत्रकारों के साथ एक संवाद करने का मौका मिला, और बिल्कुल अलग अलग एक्सपीरियंस। नई पीढ़ी के जर्नलिस्ट भी थे, भावना जी और प्रियंका जी, या कहूँ कि मिड करियर में जो अपने हैं, बिल्कुल नई पीढ़ी तो शायद नहीं कह सकते। और एक वो पीढ़ी थी जिसने पत्रकारिता की शुरुआत में उन सारे संघर्षों को और महिलाओं की स्थितियों को लेकर के, और अनु चौहान हमारे साथ में है, उन्होंने तो पूरा रिसर्च ही इसी के ऊपर किया, कितनी महिला पत्रकारों से। जी सर, एक मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, इंटरप्ट ये करूंगी कि देखिए मैं तो भाई पत्रकारिता में शीर्ष पर थी और संपादक भी बन जाती, लेकिन मैं संपादक 2-3 कारणों से नहीं बन पाई। पहली तो औरत थी, दूसरी चीज ये थी कि मैं उस तरह के कोई पॉलिटिकल जुगाड़ नहीं कर सकती थी जिसकी आजकल मालिकों को कुछ दूसरी तरह की जरूरत होती। मालिक चाहते हैं कि हमारे जुगाड़ करे, हमारे विज्ञापन लाए, हमारे बिजनेस लाए, तो ये सब काम मैं नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ पत्रकारिता कर सकती थी, सिर्फ लिखना पढ़ना कर सकती थी, और इसीलिए शायद मैं संपादक नहीं बन पाई, वरना मुझे पत्रकारिता में उस समय संपादक बनने का गौरव मुझे ही मिलता, मुझे ऐसा लगता है। और ये बात मैं जानबूझ कर कह रही हूँ, कहना चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। लेकिन फिर तो एक लखनऊ की जर्नलिस्ट है, भाई देव, आप जानती हो, सुशीला या सुनीता नाम है उनका, जो जनशक्ति के संपादक रही, शक्ति जनशक्ति वोट का, और बाद में प्रेस काउंसिल की मेंबर भी रही, वो भी हमारे यहाँ की स्टूडेंट रही हैं, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की। तो मुझे लगता है कुछ महिलाएं आखिर पहुंची हैं संपादक, और बाकी आपके टाइम्स ग्रुप और एसटी ग्रुप में तो कुछ महिलाओं ने संपादक का पद हासिल किया था उस दौर में। मैं सीनियर न्यूज एडिटर थी जब मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से जब मुझे निकाला गया तो उस समय सीनियर न्यूज एडिटर थी जी। मुझे आश्चर्य की बात है कि इनके मैनेजमेंट में महिलाएं डोमिनेट कर रही हैं, चाहे वो शोभना भरत्यागी है।
मैं आपको क्या बताऊं, जब मुझे, मैं तो यही बोलती हूँ निकाला गया और ये मेरे लिए बहुत गर्व ये ईरा मैम की खासियत है कि वो जो होता है वो सच बोलती हैं। जैसे सब कुछ भी हो, जैसे निकाला गया है जो भी है, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन ईरा मैम के बारे में ये बिल्कुल बनावट सर ये सच है कि वो जो है ना वो आज भी यही बोलेंगे और 10 साल बाद भी यही बोलेंगे। जी जी हाँ जी। ऐसा ही मेरे पास भी एक बड़ा मार्मिक प्रसंग है। गुजरात विद्यापीठ में जर्नलिज्म के प्रोफेसर हैं, उन्होंने हमारे एक किस्सा बताया था हमारे कोर्स के दौरान कि मालिक की गाड़ी के आगे वो जर्नलिस्ट की स्कूटी कैसे आगे आ गई और उसी को लेकर के उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई थी। तो ये दौर भी है, मालिकों का बिल्कुल राजसी एक तरह से व्यवहार रहा अपने पत्रकारों के साथ, तो उस पीड़ा से भी कई जर्नलिस्ट जो हैं गुजरे हैं। लेकिन चलिए, बहुत अच्छा है आज आपको, आपकी उपस्थिति जो है वो मुझे लगता है कि हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स और यूट्यूब के माध्यम से तुरंत आ गई। अनु ने कहा, मैंने थैंक यू मैम, शॉर्ट नोटिस में मैम आई। एक्चुअली टेक्निकल इशू था तो इस वजह से कई लोग जुड़ नहीं पाए मैम। अनु जी आपको भी थैंक्स कि आपने ईरा जी को बुलवाया और इट वाज एक्चुअली वंडरफुल, क्योंकि इस तरह के स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज अगर होंगे तो हम उससे सीख करके सुन करके वी आल्सो कैन यू नो रियली कम अप विद आवर थॉट्स। बिल्कुल मैम, स्टूडेंट्स को ईरा मैम का सुनना चाहिए। जी 80 के दशक का परिचय है वो, बाई चांस अब याद नहीं आया। ये तो 80 के दशक में आपसे और अनंत जी के साथ तो जब वहां थे नवभारत टाइम्स में, मेरा तो बहुत आना जाना था उस समय वहां पे। श्याम माथुर थे जो फिल्म पत्रकारिता में कितना फर्क पड़ जाता है, जवानी बुढ़ापे में फर्क पड़ जाता है ना, इसलिए पहचान नहीं। हम आपके एक बार जयपुर भी आए, मुझे याद आया। जी 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 संजीव भानावत जी। मुझे एक प्रश्न पूछना है। हेलो, नाम बोलिए, थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में। नमस्ते, मैं अश्विनी मोरे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय में मैं ताराबाई शिंदे विमेन स्टडी सेंटर में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं एक जर्नलिज्म की भी स्टूडेंट हूँ। मेरा रिसर्च चल रहा है हिस्ट्री ऑफ विमेन जर्नलिस्ट इन महाराष्ट्र। तो ये सेमिनार आपका जो नेशनल सेमिनार है मुझे काफी उससे इंफॉर्मेशन मिली। मुझे एक क्वेश्चन था, ये पूछना था कि हम सब अभी जर्नलिस्ट के, महिला जर्नलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मुझे पता करना था कि महाराष्ट्र में मैं जब रिसर्च कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि जो विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का एजुकेशन दिया जाता है, जो शिक्षण दिया जाता है, उस शिक्षण में महिलाओं की योगदान के बारे में कुछ भी किताबें यानी कि उस सिलेबस में कुछ इंक्लूड नहीं है। हिस्ट्री उनकी विमेन्स जर्नलिस्ट की हिस्ट्री इंक्लूड नहीं है। क्या आप हिंदी पत्रकारिता उधर की जो सिलेबस, अभी सर ने बोला गुजरात या जो आप जहाँ है कि वहाँ के विश्वविद्यालयों में ऐसी कुछ सिलेबस है महिलाओं के जर्नलिस्ट के हिस्ट्री के बारे में? ये मैं जानना चाहती हूँ, जो कि नए जो स्टूडेंट आए उनको पता चले कि कौन कौन जर्नलिस्ट, विमेन जर्नलिस्ट है। आपके सुपरवाइजर कौन इंक्लूड किया है? नहीं, आपके सुपरवाइजर कौन है, किनके निर्देशन में कर रहे हैं आप? अच्छा, मैं डॉक्टर सुधीर गवाने सर, ये मेरे रिसर्च गाइड है सर। सुधीर गवाने जी से अब तो वाइस चांसलर हो गए मेरे ख्याल वो। हाँ, MGM। हाँ। सुधीर गवाने जी की सेवा निवृत्ति पे आया था औरंगाबाद, पता नहीं आप उस समय थे कि नहीं थे वहाँ, है ना? नहीं, मैं थी सर, उनका जो प्रोग्राम होता तब मैं। देखिए, हर राज्यों की पत्रिका जो इतिहास लिखा गया है उसमें महिला पत्रकारों का उल्लेख मिलता है। आपकी जानकारी के लिए हिंदी में भारतेंदु का नाम सुना हो, उन्होंने 1874 में बाला बोधनी निकाली थी, पहली महिला पत्रिका। और उसके बाद भी जो इतिहास की हम जहां बात करेंगे तो उसका उल्लेख मिलेगा। तो हिंदी की जो भी पुस्तक आप देखेंगे, और मराठी में अभी निशा पवार है कोल्हापुर में, हाँ। उन्होंने 3 साल पहले एक सेमिनार किया था टेलीविजन में विमेंस को लेकर के, उसमें काफी पेपर्स पढ़े गए थे, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। निशा ने भी काफी काम किया है। मैं उनसे भी मिल चुकी हूँ, उनसे कांटेक्ट कर चुकी हूँ। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि हमारे जो पत्रकारिता के स्टूडेंट को हम जो सिलेबस पढ़ाते, जो जैसे कि हमने MG किया है, तो हमारे टाइम पत्रकारिता के सिलेबस में कोई भी महिला पत्रकारिता से संबंधित कोई भी सिलेबस इंक्लूड नहीं था। देखिए, अलग से महिला पत्रकार नहीं, जेंडर सेंसिटिविटी की बात हो रही है आजकल। जो डेवलपमेंट जर्नलिज्म के पेपर है उसमें जेंडर सेंसिटिविटी की बात काफी की जा रही है। जहां हिस्ट्री की बात करते हैं उसमें विमेन जर्नलिस्ट की बात की जा रही है। ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स के ऊपर कि वो किस तरह से उसको पढ़ा रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक्स लिख रहे हैं उनके ऊपर कि वो किस तरह से विमेन स्ट्रगल है
उसको उसके साथ जोड़ते हैं। जहां तक हिंदी की बात करता हूं मैं, हिंदी में तो बहुत लिखा गया है इन इश्यूज के ऊपर, है ना। तो हाँ, आप चाहें तो हिंदी के साथ मैंने किताब पढ़ी है। सुधा शुक्ला जी महिला पत्रकारिता, ये भी बुक मैंने पढ़ी है। हाँ, नहीं वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे इस तरह के, तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। सर मेरी जो बुक है महिला पत्रकार, उसमें भी बहुत हिस्ट्री है और मैंने भी बहुत रिसर्च निकाली हुई है। तो अगर आप मैम कभी कांटेक्ट करिएगा तो आप मेरे से सारा डाटा ले लीजिएगा, अगर आपको रिसर्च में कोई हेल्प हो जाए। नहीं मैम, मेरा वही नहीं, किताबें बहुत वो नहीं, मेरा क्वेश्चन वो है ही नहीं है, क्योंकि एज अ महाराष्ट्र में मैं जितना भी रिसर्च कर रही हूँ, उस रिसर्च में सिलेबस में महिला पत्रकारिता का योगदान जो है वो कहीं भी मैं आपसे एक बात कहूंगी, मुझे भी 17 साल हो गए, जब ऑफिसों में महिलाओं के योगदान को नहीं लिया जाता तो किताबों में गवर्नमेंट कब लेगी? या मैं मतलब यही कहूंगी, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। नहीं अनु, इनकी पीड़ा है मराठी भाषा में नहीं लिया गया, हिंदी में तो मराठी हाँ उसमें तो मिल जाएगा। हाँ है भी सर बहुत सारा। सुधीर गवाने जी हैं, धारूड़कर जी हैं, रवि चिंचोलकर जी हमारे साथ में थे, निशा पवार है, सुधीर भटकर जी है, इन लोगों से मिलिए, मदद करेंगे आपकी। ठीक है। और जो बात स्पेसिफिकली अश्विनी जी आप बोल रहे हो, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पर। अगर आपका ये कहना है कि अभी तक सिलेबस में कुछ नहीं है, तो आप इस मुहिम को शुरू करिए और महिला पत्रकारों के विषय में लिखिए। नहीं, मैं ऑलरेडी हूँ, मैंने ये शुरू कर दिया है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। सेंटर की एक प्राध्यापक होने के नाते जेंडर सेंसिटाइज जेंडर मीडिया उसमें इंक्लूड करने का, जहां भी मैं रिसर्च के लिए जाती हूँ, जो भी प्रोफेसर से बात करती हूँ, तो उनसे मैं ये बोलती हूँ कि आप ये सिलेबस में इंक्लूड कीजिए। वेरी गुड, आप करिए, आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे। लीडर हैज टू बी स्ट्रांग, फॉलोअर्स विल फॉलो। सो विश यू गुड लक फॉर दैट। अगले वेबिनार में हो सकता है हम नाम लें कि अश्विनी मोरे जी ने ये लिखा है, ये बताया है। वी विश यू फॉर दैट। गुड लक टू यू। प्रोफेसर भानावत, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वाइंड अप दिस, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। चलिए, तकनीकी व्यवधानों के बावजूद मुझे लगता है कि ये पूरी चर्चा जिस अनौपचारिक तरीके से बहुत ही जीवंत और विचारपूर्ण रही है, और इस विषय के विविध पक्षों पर प्रियंका जी ने और भावना जी ने अपने प्रारंभिक वक्तव्यों में उन संघर्षों के स्वरूप से लेकर के किस तरह से एक आशावादी स्वर में ये आस्था प्रकट की है महिलाओं की क्षमता, प्रतिभा और संभावनाओं पर, कि वो दोहरे दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी अपने कार्यों को बखूबी पूरा करने में सक्षम है। और ईरा जी ने अपनी इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए जिस तरह से उस पूरे इतिहास की ओर संकेत किया कि किन संघर्षों के दौर में महिला पत्रकारों ने अपने उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी आशा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने की कोशिश की है। और इतने बड़े समूह के प्रबंधन से टक्कर लेना, मुझे लगता है ये भी कोई आसान बात नहीं है। एक तरह से आपके उस संघर्ष ने हमारे जो नए जर्नलिस्ट हैं उनके सामने एक ऐसी भूमिका तैयार की है कि यदि आपकी संकल्प शक्ति, विल पावर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो कोई ताकत आपको अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती। बहुत सारे पक्ष आपके सामने रखे और संयोग से देश के विभिन्न अंचलों में पत्रकारिता शिक्षण और पत्रकारिता कर रहे हमारे प्रतिभागियों ने भी अपने अनुभव, अपनी जिज्ञासाएं आप सभी के साथ शेयर की। मैं किसी भी चर्चा की सार्थकता इसी में मानता हूं कि वो चर्चा इस तरह से आगे बढ़ती रहे कि हमें बीच में इंटरप्ट करना पड़े कि अब अपन इसका समापन करें, क्योंकि लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का समय हो गया है। वर्किंग डे है। आप सभी ने जिस सक्रियता के साथ लंच के बाद के समय में उस सजगता, तल्लीनता और जीवंतता को बनाए रखा, बहुत बहुत आभारी हैं। इस उम्मीद के साथ कि भले ही पेंडेमिक का दौर कभी ऊंचा नीचा हो रहा है, सुबह उठते ही लगता है कि नहीं शायद स्थितियां ठीक हैं, शाम होते होते लगता है कि नहीं सेकंड वेव का सामना करना पड़ेगा। इस दौर में हमने विचार विमर्श की श्रृंखला को बनाए रखा, इस उम्मीद में कि भले ही सब कुछ चीज़ें सामान्य होती चली जाए, ये जो दौर है तकनीक का, ये जो सुविधा मिली है, इसके माध्यम से हम आगे भी देश के विभिन्न अंचलों में बैठे हुए मित्र एक साथ एक मंच पर बैठ करके संवाद की इस श्रृंखला को बनाए रखेंगे। आप सभी से इस उम्मीद में
कि आगे भी हमारी वेबिनार्स में यही सक्रिय सहभागिता आपकी बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you. Jai Hind. Thank you. जय हिंद। ठीक है सर, इसका रिकॉर्डिंग ऑफ करनी है।